Good morning, everyone. This is Preetham Sawant. I work with Apex Kidney Care as a DGM marketing. I welcome you all the students, dignitaries, speakers, for this very special activity event and online guidance session, which is on healthcare career options for all the students. May it be science, commerce, from any stream you come from. Today, with help of experts, stalwarts in the industry, we are going to give you all the kind of information which will help you to take a very important career, decision of your life, that is career. To begin with, I would tell you that we belong to Apex Kidney Care. It's a group which exists since 2008, and we are one of the leading dialysis network in the country. And we are run by nephrologists who have been helping this particular industry with a lot of efforts, a lot of dialysis support to a lot of people. Along with this, we also have ASDT, which is an education arm of this organization. And this event is organized through them, that is Apex School of Dialysis Technology. To begin with, I would just give you an introduction that how we are going to conduct this activity. We will have our welcome note followed by our director who would talk about career in healthcare from a medical perspective, who is a doctor, followed by our course director who is going to take you through all the possible options in the career, followed by courses which are available with our organization, our education institute. And we'll also hear few other technicians, other industry professionals who will share their information. So please be seated, please log in, ask your friends to log in as earliest as possible as we are beginning this very beautiful event today. Thank you. And now I would like to invite our CEO and Director of Apex Kidney Care, Mr. Indranil Roy Chaudhary, to give us a welcome note speech. Thank you, sir. Over to you. Thank you, Preetham. Very good morning to everyone, all the participants, all the speakers, all the faculty members of ASDT who have joined this program. I'm really grateful. बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको संडे की मॉर्निंग ज्वाइन करने के लिए. Now ASDT ये प्रोग्राम के बारे में जानने के पहले let us understand how the healthcare industry of our country is taking shape. As we know, हम अपने देश जितने भी हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, as India is progressing, we are a developing country, and we are one of the fastest growing economy in the whole world now. We all know that. So healthcare is a top priority. Even if you talk about the sustainable developmental goals, जो हमारी प्रधानमंत्री की कमिटमेंट है टुवर्ड्स यूनाइटेड नेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के 3 नंबर में हेल्थ केयर आता है. So which means आज हेल्थ केयर बोथ गवर्नमेंट के लिए एज वेल एज प्राइवेट कंपनी के लिए एज वेल एज इन्वेस्टर्स के लिए, जिसके पैसे से एंटायर इंडस्ट्री चलते हैं, सबके लिए हेल्थ केयर इज अ टॉप मोस्ट प्रायोरिटी. भारत सरकार की हेल्थ केयर के ऊपर इन्वेस्टमेंट एवरी डे इज इंक्रीजिंग, एवरी ईयर इज इंक्रीजिंग इन मेनी फोल्ड. लास्ट 3 साल में ये इन्वेस्टमेंट हैज ऑलमोस्ट बिकम डबल्ड, which means more and more healthcare jobs are created. Very soon we will see that healthcare facilities spread across the length and breadth of the country. मैं ये क्यों बात कर रहा हूँ? इसका तात्पर्य यह है कि बहुत सारे जॉब हेल्थ केयर में क्रिएट हो रहा है. ये इंडस्ट्री बहुत ग्रो कर रहा है, और जब इंडस्ट्री ग्रो करता है उसके साथ हम सबको ग्रो करने की अपॉर्चुनिटी है. सो हेल्थ केयर में ज्वाइन करने का बहुत ही मायने रखता है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. It makes a lot of meaning, and there's enough potential to grow. So that is about overall healthcare. Now let's understand dialysis. Dialysis एक पेशेंट की जब किडनी फेलियर होता है, किडनी फेलियर स्टेज 5 में डायलिसिस दिया जाता है. मैं उसके बारे में ज्यादा बोलना नहीं चाहूंगा. डॉक्टर राजेश कुमार सर यहाँ पे है, सुधीर है, ये लोग बात करेंगे उसके ऊपर. बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू अंडरस्टैंड, हमारे देश में लगभग 2 मिलियन, दैट इज 20 लाख ऐसे पेशेंट है जिसको डायलिसिस की जरूरत है. लेकिन आज देश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें से शायद ही 3 या 4 लाख लोग रेगुलर डायलिसिस ले पाता है. इसका मतलब देयर इज अ ह्यूज डिमांड वर्सेस सप्लाई गैप. दैट मीन्स बहुत सारे लोगों को आज डायलिसिस की जरूरत है, लेकिन डायलिसिस की फैसिलिटी नहीं मिलती. इसका मतलब ये और है
कि ये डायलिसिस सेगमेंट में देयर इज इनफ ग्रोथ पोटेंशियल। सो बहुत ज्यादा ग्रोथ पोटेंशियल है ये डायलिसिस सेगमेंट। और डायलिसिस देने के लिए डायलिसिस टेक्नीशियंस एंड नर्सेस play a fundamental and perhaps the most important role, on which again Dr. Rajesh Kumar and Mr. Sudhir Baggarao will speak about that. सो डायलिसिस के लिए डायलिसिस टेक्नीशियन की बहुत ही आवश्यक है। और डायलिसिस का इंफ्रास्ट्रक्चर जितना बढ़ेगा, डायलिसिस टेक्नीशियन और नर्सेस की जरूरत उतना ही बढ़ेगी। तो ये जो कोर्स की ये बात करेंगे आज हम लोग, इसका बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। एक तो पोटेंशियल, दूसरे बात ग्रोथ का क्या अपॉर्चुनिटी। देखिए, आज गवर्नमेंट जितना स्पेंड कर रहा है डायलिसिस के ऊपर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज बिकमिंग मोर एंड मोर कॉन्शियस अबाउट द क्वालिटी ऑफ डायलिसिस। और जिसके लिए क्वालिटी मॉनिटरिंग की जरूरत है और क्वालिटी एश्योरेंस टीम की जरूरत है। जैसे एपेक्स किडनी केयर जैसी कंपनी में हमारी, we are one of the rare companies in the whole country which not only runs a professionally acclaimed dialysis technician course under Epic School of Dialysis Technology, जिसके बारे में नीतू भी है, ये सब लोग आपको बाद में बताएंगे। इतने एक्रेडिटेड कोर्स और कोई कंपनी रन नहीं करता है, और इतनी कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स और कोई कंपनी रन नहीं करता। हमारी कोर्स की पूरी फोकस है क्वालिटी के ऊपर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। सो ओवरऑल ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं ये कहना चाहूंगा, एक हेल्थ केयर बहुत ही ग्रोइंग फील्ड है, जिसके आगे चल के आगे की सालों में इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंस और भी बढ़ेगा, ऑलरेडी बढ़ चुका है और बढ़ेगा। हेल्थ केयर के अंदर डायलिसिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज सो मच ऑफ diabetic and hypertensive patients ultimately are going to have kidney failure, and ultimately they will need the dialysis, जिसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत जरूरत है। और अच्छी डायलिसिस देने के लिए अच्छी टेक्नीशियन की बहुत जरूरत है। लेकिन अच्छी टेक्नीशियन बनने के लिए अच्छी कोर्स ज्वाइन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ऐसा कोर्स जिसको सब मान्यता देते हैं। कोर्स तो बहुत लोग रन करते हैं, लेकिन बहुत ही कम कोर्स है जिसके पास टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस के एंडोर्समेंट है, जिसको महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ वोकेशनल एजुकेशन हैज गिवन डिग्री एंड डिप्लोमा कोर्स रन करने की परमिशन। तो ऐसा कोर्स ज्वाइन करने का आज आप सबको मौका है। और यहाँ पे हमारे साथ बहुत ही विशेषज्ञ सब लोग हैं, डॉक्टर राजेश कुमार, सुधीर बग्गाराव, नीतू, and then there are many of our students, I can see Divya and Chetan, who has done this course earlier and now they are successful in their professional world. So बाकी टाइम ना लेते हुए मैं प्रीतम को वापस करना चाहूंगा और रिक्वेस्ट करूंगा प्रीतम टू टेक दिस फॉरवर्ड, and wish all of you a very very interactive and very helpful learning session. Thank you very much. Thank you. Thank you very much, sir. This was very, very powerful opening to and very, very important event. And I'm sure this is going to inspire a lot of people. With this, now I would like to continue to the next section, which is very important. A lot of students have been waiting for this. Is Dr. Rajesh Kumar, sir. He is well known, and to give you a little introduction, more than 20 plus years he has been in the industry. He is a senior consultant nephrologist and transplant physician with Apex Kidney Care. Is also associated with the prestigious Hiranandani Hospital. And not only this, but he is also passionate about teaching and especially into dialysis technology. And further, he would certainly talk about his achievements when we hear from him. And let's hear from him from a doctor's perspective towards career, towards dialysis as a career choice. Dr. Rajesh Kumar, sir, welcome you and would like you to address the students now. Thank you. थैंक यू प्रीतम एंड नमस्कार दोस्तों। आज जो टॉपिक है वो है कैरियर अपॉर्चुनिटी इन हेल्थ केयर सेक्टर। जैसा कि आप लोग ऐसे जगह पे अभी हैं, जैसे जब स्टूडेंट 10th और 12th पास करता है तो एक ऐसे मोड़ पे रहता है जिसमें 4 रास्ते होते हैं और आपको चूज करना है कि कौन से रास्ते आपको आपकी मंजिल तक, आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचाएगी। और उस मंजिल तक पहुंचने के लिए आपको जो डिसीजन लेना है, ये सोचते हुए लेना है कि कौन सा ऐसा फील्ड है जिसमें आप अपना रास्ता तय करेंगे और मंजिल तक पहुंचेंगे। तो हेल्थ केयर एक ऐसा सेक्टर है जो कि इंडिया में काफी तेजी से ग्रो कर रहा है। अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट है इंडिया में जो कि हेल्थ केयर सेक्टर पे है। जैसे कि हॉस्पिटल होते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल होते हैं,
इंस्टीट्यूट होते हैं जहाँ पढ़ाई की जाती है, जहाँ पे डॉक्टर बनाए जाते हैं। इस तरह से बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिसमें कि ये अपॉर्चुनिटी रहती है। तो अगर हम हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटी की बात करें तो अपॉर्चुनिटी को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं हेल्थ केयर में। एक अपॉर्चुनिटी ऐसी है जिसमें कि आप पेशेंट के साथ रहना पसंद करते हैं, जैसे कि डॉक्टर बनना पसंद करते हैं, लेकिन सब लोग डॉक्टर्स नहीं बन सकते हैं, लिमिटेड अपॉर्चुनिटी है, लिमिटेड सीट है। तो आप क्या चाहोगे कि अगर मेरे को पेशेंट के साथ ही रहना है, क्योंकि बहुत लोग की एक इमोशनल इन्वॉल्वमेंट होती है, जैसे मेरी माँ अगर किडनी की पेशेंट या मेरे पापा अगर हार्ट के पेशेंट है, तो मैं चाहता हूँ कि उस फील्ड में कुछ कंट्रीब्यूट करूँ, सोसाइटी को कुछ करूँ, कुछ ऐसा करूँ कि हमारे माँ पापा भी जब ऊपर से देखें तो एक खुश रहें कि देखो मेरे बेटे ने जिस फील्ड में काम किया है उसमें अच्छा कर रहे हैं। तो एक फील्ड है डॉक्टर बनने का, दूसरा फील्ड है डेंटिस्ट बनने का, तीसरा फील्ड है नर्स बनने का। और उसके अलावा कुछ एलाइड सपोर्टिंग फील्ड है, जैसे जो डॉक्टर है वो अकेले तो काम करेगा नहीं। अगर वो डायलिसिस का डॉक्टर है तो डायलिसिस टेक्नीशियन की जरूरत होगी। अगर वो रेडियोलॉजिस्ट है तो उसको रेडियोलॉजिस्ट की टेक्नीशियन की जरूरत होगी। अगर वो एनेस्थेसियोलॉजिस्ट है तो एनेस्थेसिया में टेक्नीशियन की जरूरत होगी। जैसे अगर वो कोई न्यूरोलॉजिस्ट है और उसको पैरालिसिस हुआ या पेशेंट को या कुछ, तो आपको फिजियोथेरेपिस्ट की जरूरत होगी। पेशेंट को लैब की जरूरत होती है, ब्लड इन्वेस्टिगेशन की जरूरत होती है, तो लैब टेक्नीशियन की जरूरत होती है। ये कुछ ऐसे फील्ड हैं जिसमें आप पेशेंट के कांटेक्ट में रहोगे। दूसरा फील्ड जो आता है जो पेशेंट से कांटेक्ट में नहीं रहते हुए आप काम करोगे। जैसे फिल्म बनती है तो हम लोग एक्टर को देखते हैं, लेकिन पीछे जो बिहाइंड द सीन है, जैसे जो वीडियोग्राफर है, जो कैमरामैन है, जो म्यूजिशियन है, उसके बारे में हम उतना जिक्र नहीं करते हैं। लेकिन इस फील्ड में भी वैसा ही है कि जो हम डॉक्टर को ज्यादा देखते हैं, टेक्नीशियन को ज्यादा देखते हैं, लेकिन उसके पीछे भी जो बैकबोन है, जैसे कि हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर है, जैसे कि हम हेल्थ इंफॉर्मेशन मैनेजर होते हैं, जो बिलिंग करते हैं, मेडिकल बिलिंग या कोडिंग, उसके स्पेशलिस्ट होते हैं। आप एमबीए इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं। कुछ लोग पब्लिक हेल्थ में काम करते हैं, चाहते हैं कि हम एनजीओ में काम करें, ट्रस्ट में काम करें, जाओ कि पेशेंट को मदद पहुंचाने में काम करता है। कुछ लोग जैसे अभी हेल्थ केयर है तो उसमें हमारे को फार्मेसी या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की जरूरत होगी, मेडिसिन की जरूरत होगी, तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ हेल्थ केयर। अभी इसमें फार्मासिस्ट की जरूरत हो सकती है। कुछ लोग जब दवाएं मार्केट में आती है, जब पेशेंट पे यूज करते हैं, उसके पहले ट्रायल्स होती है, उसके लिए रिसर्च एसोसिएट की जरूरत होती है, साइंटिस्ट की जरूरत होती है, ड्रग सेफ्टी एक्सपर्ट की जरूरत होती है। तो ये फील्ड भी एक ऐसा फील्ड है जिसमें कि आप हेल्थ केयर में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आने वाले समय में आप लोग सबको पता है कि डिजिटल हेल्थ एंड टेक्नोलॉजी जो है बहुत अपकमिंग एरिया है, जिसमें कि हेल्थ इंफॉर्मेटिक एक्सपर्ट्स हैं, टेलीमेडिसिन। आजकल गांव में अगर हेल्थ केयर की सुविधा नहीं है तो आप शहर में बैठ के अपने पेशेंट से वहां पे डायलिसिस यूनिट से कम्युनिकेट करते हैं ऑनलाइन, और वहां पे आप अपनी इस सर्विस को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो बहुत सारे मेडिकल एप्स डेवलपर होते हैं, उस फील्ड में भी आप जा सकते हैं। कुछ इमर्जिंग कैरियर भी है जिसको कि आप लोग को सोचना है। जैसे आजकल मेंटल मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम बहुत हो रहे हैं सोसाइटी में, डिप्रेशन, कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है। तो बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जिसको कि काउंसलिंग की जरूरत होती है, तो साइकोलॉजिस्ट है, साइकेट्रिस्ट है, काउंसलर है। आजकल मेडिकल जो प्रॉब्लम्स होते हैं जो कि जेनेटिकल होते हैं, जो जन्म से आते हैं, तो बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि क्यों ना प्रेगनेंसी के समय ही हम पता कर लें कि जो बच्चा आने वाला है उसमें कोई प्रॉब्लम्स आएगी कि नहीं। तो जेनेटिक काउंसलिंग है, वो एक नया फील्ड है। कोई भी पेशेंट, चाहे वो डायबिटिक की हो, हाइपरटेंसिव हो, किडनी डिजीज की हो, तो उनको एक डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट की जरूरत होती है, ताकि खाने पीने में परहेज जो हो सके वो कर सके। पैलिएटिव केयर मतलब एंड ऑफ लाइफ सिचुएशन है, पेशेंट बहुत ओल्ड हो गया है और तकलीफें ज्यादा है, ऐसी है कि वो जिंदगी में मतलब तकलीफ, खुशी से ज्यादा तकलीफ वो कर रहा है। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं पैलिएटिव केयर करो, जब तक की जिंदगी है तब तक उनको खाली सपोर्टिव केयर पे रखो। तो वो भी एक ऐसा फील्ड है जिसमें आप कर सकते हैं। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि मैं टीचर बनूं। टीचर इसलिए बनना चाहते हैं क्योंकि वो स्टूडेंट को तैयार करना चाहते हैं, वो कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं सोसाइटी को, हेल्थ को, सोसाइटी को, देश को। तो उन लोग मेडिकल कॉलेज में काम कर सकते हैं, हेल्थ इंस्टीट्यूट में काम कर सकते हैं। जैसे आपके सामने ही अभी सुधीर बग्गा राव नीतू है, जो कि अपने फील्ड को एजुकेशनिस्ट के रूप में उन्होंने तैयार किया, और उनके अंडर कम से कम हजारों स्टूडेंट आज
अपने फैमिली को रन करते हैं बाय डूइंग अ गुड जॉब, गुड प्रोफेशनल जॉब, लाइक अ डायलिसिस टेक्नीशियन, लाइक अ होम डायलिसिस मैनेजर, लाइक अ क्वालिटी केयर, क्वालिटी असिस्ट मैनेजर। सो अल्टीमेटली क्या होता है, किसी भी फील्ड में क्वालिटी की जरूरत है तो उसको मॉनिटर करने के लिए भी हमको क्वालिटी एनालिटिक की जरूरत होती है। तो उस फील्ड में भी आप जा सकते हो। इस तरह से आप देखोगे कि हेल्थ केयर इज नॉट ओनली कि आप डॉक्टर बन जाओ, हेल्थ केयर में बहुत सारे ऐसे रोल्स हैं जो आप कर सकते हो। और ये जो रोल्स हैं ये हेल्थ केयर से रिलेटेड। अब मैं थोड़ी सी बात डायलिसिस से रिलेटेड करूंगा। डायलिसिस से रिलेटेड ज्यादातर बात सुधीर बग्गाराव करेंगे, लेकिन मैं थोड़ी सी बात करना इसलिए चाहता हूं क्योंकि मैं उस फील्ड को बिलोंग करता हूं। अगर आप किडनी डिजीज का बर्डन देखें, सो किडनी डिजीज का बर्डन क्या है कि अगर आप आसपास में 7 लोग को देख रहे हैं तो उसमें से एक लोग जो है वो अननोइंगली या नोइंगली किडनी का मरीज है। उसको पता भी नहीं है कि उसको किडनी की बीमारी है, लेकिन वो अननोइंगली या नोइंगली वो किडनी का मरीज है। मतलब 7 में 1 मरीज जो है, ऑलमोस्ट 15% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन आर सफरिंग फ्रॉम किडनी डिजीज। दैट इज द ट्रू बर्डन। अभी इस बर्डन में इतने सारे किडनी डिजीज में भी देखेंगे हर साल 2 लाख मरीज इन स्टेज किडनी डिजीज के मरीज होते हैं। तो अभी 2 लाख मरीज अगर हो रहे हैं तो ये जाते कहाँ हैं, ये क्यों नहीं ट्रीटमेंट कर पाते हैं? जैसा कि इंद्रनील ने बताया कि बर्डन इतनी है और सप्लाई नहीं है, तो मतलब डिमांड सप्लाई मिसमैच है। मतलब कि 2 लाख पेशेंट को डायलिसिस प्रोवाइड करना है या ट्रांसप्लांट करना है। अभी आपके पास ट्रीटमेंट ऑप्शन दो है, या तो आप डायलिसिस करोगे या ट्रांसप्लांट करोगे। हमारे देश में 15,000 ट्रांसप्लांट साल के होते हैं। उसमें से 1,000 ट्रांसप्लांट जो ऐसे होते हैं जो कि डिजीज डोनर होते हैं, मतलब जो ब्रेन डेड होते हैं, एक्सीडेंट विक्टिम होते हैं, उनके जो मरीज होते हैं वो ट्रांसप्लांट उसके थ्रू होते हैं। और 90% जो ट्रांसप्लांट है, 80% वो होते हैं लिविंग डोनर, मतलब परिवार के कोई मेंबर जो है वो किडनी देते हैं। तो आप देखो 2 लाख अगर मरीज है उसमें से सिर्फ 15,000 ट्रांसप्लांट कर पाएंगे, तो 1,85,000 क्या करेंगे? उनके पास डायलिसिस के सिवा कोई ट्रीटमेंट ऑप्शन नहीं। अभी डायलिसिस की फैसिलिटी हर जगह पे नहीं है। अभी आप देखोगे 2000 में जब मैं पढ़ाई कर रहा था उस समय डायलिसिस 500-600 सेंटर पूरे इंडिया में थे। आज सरकार के एक पॉलिसी आई जिसको हम लोग नेशनल डायलिसिस हेल्थ पॉलिसी बोलते हैं, जिसमें कि फ्री डायलिसिस स्कीम है अंडर प्रिविलेज लोगों के लिए। और ये जब से ये स्कीम आई 2014 के बाद, उसके बाद ऑलमोस्ट 5,000 सेंटर आज पूरे देश में हो गए हैं, जबकि 3 लाख मरीज डायलिसिस ले रहे हैं, जो कि दुनिया में ऑलमोस्ट तीसरी या चौथी सबसे बड़ी डायलिसिस पॉपुलेशन है। और ये आने वाले समय में और तेजी से बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि ये फ्री डायलिसिस स्कीम अब इस टीयर 2 एंड टीयर 3 सिटीज एंड विलेजेस में भी लागू हो रही है। अगर आप देखोगे तेलंगाना है, कुछ ऐसे स्टेट है, केरला है, जहाँ पे हर छोटे से छोटे तालुका में भी आपको डायलिसिस यूनिट मिलेगा। तो वहां पे जो पेनिट्रेशन है डायलिसिस की वो काफी अंदर तक गई हुई है, कुछ स्टेट को छोड़ के, जहाँ की अभी भी बड़े बड़े शहरों में आपको डायलिसिस फैसिलिटी मिलेगी छोटे छोटे। तो आप सोचो कि कितना पोटेंशियल है इस फील्ड में, कि आपका डायलिसिस सेंटर भी अभी बहुत सारी जगह पे नहीं है। अभी डायलिसिस सेंटर है, अगर कोई मरीज डायलिसिस को आता है तो कौन कौन से प्रोफेशनल की हमको जरूरत होती है? अभी आप देखोगे डायलिसिस टेक्नीशियन एक प्रोफेशनल है जो डायलिसिस करता है, लेकिन उसके साथ साथ हमको एक रिसेप्शन काउंटर लगता है, एक काउंसलर लगता है, एक डाइटिशियन लगता है, एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होता है तो उसका टेक्नीशियन होता है जो कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को मैनेज करेगा, एक इंजीनियर होता है बायोमेडिकल इंजीनियर जो डायलिसिस मशीन या आरओ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को मैनेज करेगा। तो इस तरह से आप देखोगे कि इसी में अगर हम डायलिसिस सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो बैकबोन एक क्वालिटी एनालिसिस है कि वो डायलिसिस यूनिट कितना अच्छा क्वालिटी करके दे रहा है, तो उसका एक होता है। इस तरह से आप देखोगे ये सब फील्ड है जो कि डायलिसिस टेक्नीशियन, डायलिसिस प्रोफेशनल्स के अलावा आप कर सकते हो। जैसे कोई हमारे टेक्नीशियन है जो उनका इंटरेस्ट रहता है कि क्वालिटी में हम काम करें, कोई टेक्नीशियन है उसका इंटरेस्ट होता है हम एजुकेशनिस्ट बने, कोई टेक्नी हमारे पास हैं जो हमारे इन हाउस एपेक्स स्कूल ऑफ डायलिसिस टेक्नीशियन टेक्नोलॉजी स्कूल से निकले हुए बच्चे आज आपको हर एक फील्ड में, चाहे वो क्वालिटी में हो, चाहे आरओ में हो, चाहे हर फील्ड में वो काम कर रहे हैं। तो दैट इज द कैरियर स्कोप जो हमारे फील्ड में है। इसके अलावा
डायलिसिस से रिलेटेड या डायलिसिस के बारे में सुधीर बग्गा राव से बड़ा कोई बोल नहीं सकता है, क्योंकि सुधीर बग्गा राव आज इस देश में अगर आप देखोगे बहुत सारे टेक्नीशियन या बहुत सारे डायलिसिस फील्ड में प्रोफेशनल हैं, वो अपने वो उनके थ्रू ही आगे बढ़े हैं और वो इस फील्ड में लीडर हैं। और ये लीडर जो है वो एक एपेक्स स्कूल ऑफ डायलिसिस टेक्नोलॉजी का कोर्स डायरेक्टर है। तो आपको इससे अच्छा कोई पर्सन नहीं मिलेगा जो आपको गाइड कर सके इस फील्ड में। तो मैं सुधीर को बोलूंगा कि आगे इसके बारे में आप बात करो। थैंक यू सर। आपकी इंफॉर्मेशन से काफी लोगों को मेडिकल प्लस नेफ्रोलॉजी प्लस डायलिसिस ये सारी चीजों का इंट्रोडक्शन हुआ होगा। आज हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं वो यंग बच्चे हैं, जो 17 18 20 साल के उम्र के हैं। एंड एक्सपीरियंस्ड लोगों से सुनने से उनको काफी फायदा हुआ होगा। Thank you very much, sir, for gracing the occasion. And next session हमारा होगा on exactly what are the courses which are available। क्या क्या आप चूज कर सकते हो, क्या आपको मैच होता है, वो उसके लिए सर ने इंट्रोड्यूस तो किया हुआ ही है। पर हमारे कोर्स डायरेक्टर ऑफ एपिक स्कूल ऑफ डायलिसिस टेक्नोलॉजी के सुधीर बग्गाराव सर जी, जिनका एक्सपीरियंस सिंस मोर देन 30 years है इस फील्ड में, एंड ही इज बिन एसोसिएटेड विद एपिक्स किडनी केयर सिंस वेरी वेरी लॉन्ग। एंड ऐसे कोई टेक्नीशियन नहीं है जो उन्हें जानते नहीं है डायलिसिस इंडस्ट्री में। और उनसे हम समझते हैं नॉट ओनली डायलिसिस के रिलेटेड, नेफ्रोलॉजी के रिलेटेड करियर, अलाइड करियर्स, बट ओवरऑल कंप्लीट हेल्थ गैमेट में क्या क्या है। उसके लिए सुधीर सर, ओवर टू यू। थैंक यू। Thank you, Preetham. Thank you, Rajesh sir, for your fantastic talk. It was really inspirational and motivation to the all the participants who are looking for a career in healthcare. So मैं थोड़ा जो जो राजेश सर ने बात किया था उसको थोड़ा आगे लेके जाके क्या क्या अपॉर्चुनिटी है, कैसे हम ये फील्ड में आ सकते हैं, कैसे हम ये फील्ड में नाम बना सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा 10 12 मिनट में आप लोगों के साथ चर्चा करूंगा। Pritam, allow me to share my screen, please. Yeah. Okay. तो राजेश सर ने आपको बताया ये करियर ऑप्शन क्या क्या है हेल्थ केयर में। हेल्थ केयर एक बड़ा फील्ड है। अम, बहुत सारे करियर अपॉर्चुनिटी है, बहुत सारे अपॉर्चुनिटी है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी आप बोलो या आपकी करियर बिल्ड करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी उसमें ये फील्ड में है। और ये ऐसा एक फील्ड है हेल्थ केयर कि यहाँ पे कुछ तेजी मंदी का कुछ ये नहीं होता, यहाँ पे जॉब्स जाते नहीं है। तो ये एक स्टेबल करियर, एक नोबल प्रोफेशन करके ये हेल्थ केयर के करियर को देखा जाता है। Basically, once you enter in a healthcare, you are in a business of life saving। और दुनिया में ऐसा कौन सा भी प्रोफेशन नहीं है जहाँ पे आप आपके काम के साथ साथ एक गुडविल कमाते हो, एक एक हम बोलते हैं ना पुण्य कमाने का काम करते हैं, वो हेल्थ केयर में होता है। तो जैसा हेल्थ केयर में सर ने बोला कि जस्ट बिकमिंग डॉक्टर इज नॉट द ओनली वे। जैसा कि आप फिर एमबीबीएस सिर्फ एमबीबीएस करके हेल्थ केयर में आ सकते हैं, ऐसा नहीं है। हेल्थ केयर सिस्टम चलाने के लिए एक सिर्फ डॉक्टर ये हेल्थ केयर सिस्टम चला नहीं सकते हैं, उनके साथ साथ बहुत सारे प्रोफेशन हैं जो डॉक्टर्स को, सर्जन को, रेडियोलॉजिस्ट को, पैथोलॉजिस्ट को या मेडिकल स्पेशलिस्ट को असिस्ट करते हैं। और इसमें आप करियर बना सकते हो। तो इट्स बियॉन्ड एमबीबीएस। मतलब आप मेडिकल स्कूल में आपको एडमिशन नहीं मिला तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप हेल्थ केयर में आपका करियर नहीं बना सकते हो या आप हेल्थ केयर में नाम कमा नहीं सकते हो। सो बहुत सारे ऑप्शंस है हेल्थ केयर में आपको एंट्री करने के लिए। सबसे पहले फोरमोस्ट जो होता है, जो मेडिकल स्कूल, मॉडर्न मेडिसिन, जैसे मेडिसिन और सर्जरी हो गई, इसमें आप पढ़ाई कर सकते हो। तो ये, लेकिन यहाँ पे एंट्री करना जैसा सर ने कहा था बहुत डिफिकल्ट है। आपको नीट क्वालिफाई करना पड़ता है, कंपटीशन है। तो उसके बाद आता है जैसे डेंटिस्ट्री है, आयुष है, फिजियोथेरेपी है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी है, स्पीच थेरेपी है, नर्सिंग है, न्यूट्रिशन साइंस और डायटिशिक्स है।
ये सब फील्ड तो हमें बहुत सारे लोगों को मालूम है। हमें क्या मालूम नहीं है, ये अलाइड हेल्थ प्रोफेशन क्या है। कौन से अलाइड हेल्थ प्रोफेशन है जहां पे आप, यदि आपको मेडिकल स्कूल में एडमिशन नहीं मिला और आप हेल्थ केयर में करियर करना चाहते हो, तो ऐसे कौन से फील्ड है जहां पे आप एंट्री कर सकते हैं, इससे आपको थोड़ा सा मैं अवगत करूंगा। तो हेल्थ केयर जो है, उसमें अलाइड हेल्थ केयर की जो बात करते हैं, तो अलाइड हेल्थ केयर में क्यों आना है? इसीलिए कि यहाँ पे डाइवर्स अपॉर्चुनिटी है। इट ऑफर्स रेंज ऑफ करियर पाथ बियॉन्ड ट्रेडिशनल रोल। मतलब यहाँ पे सिर्फ आपको पेशेंट की ट्रीटमेंट ही नहीं करना है, बहुत सारे रोल आपको पॉसिबल है यदि आप अलाइड हेल्थ केयर में आते हैं तो। ये ग्रोइंग फील्ड है। जैसे कि आप देखोगे कि सर ने भी बताया, जैसे डायलिसिस सेंटर्स बढ़ रहे हैं, किडनी पेशेंट के नंबर्स बढ़ रहे हैं, किडनी पेशेंट का लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रहा है। तो यहाँ पे ग्रोथ के लिए बहुत अपॉर्चुनिटी है। जैसे जैसे हेल्थ केयर ग्रो होती है, वैसे वैसे अलाइड हेल्थ केयर के लिए भी, हेल्थ केयर प्रोफेशनल के लिए भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी बन बन जाती है, एक डिमांड बन जाती है। तो यदि उसके साथ हम चलेंगे तो डेफिनेटली हम इसमें करियर बन सकते हैं। और दूसरा एक पॉइंट है कि यहाँ पे इम्पैक्टफुल करियर बनाने का एक अवसर आपको मिलता है, बिकॉज हेल्थ केयर प्रोफेशनल प्ले वेरी क्रुशियल रोल इन पेशेंट केयर एंड हेल्थ केयर सिस्टम। जैसे कि डॉक्टर्स है, सर्जन है, मेडिकल स्पेशलिस्ट है, वो तो अपने जगह पे है, लेकिन उनका काम यदि ठीक से होना है, एक इफेक्टिव वे में होना है, तो ये उनके लिए भी एक अच्छी टीम होना जरूरी है। तो अच्छे टीम बनाने के लिए ये अलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशन की जरूरत होती है। सॉरी। तो अलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशन का इंपॉर्टेंस क्यों है? एक तो वर्कफोर्स कंट्रीब्यूशन होता है अलाइड हेल्थ प्रोफेशन में। ऑलमोस्ट 60% ऑफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल, मतलब जितने भी लोग हेल्थ केयर सिस्टम में काम करते हो, इंक्लूडिंग डॉक्टर, नर्सेस, फिजियोथेरेपिस्ट, काउंसलर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उसमें लगभग 60% जो फोर्स है वो अलाइड हेल्थ प्रोफेशन से आता है। और एक इसेंशियल सर्विस है हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम में। अलाइड हेल्थ केयर एक इसेंशियल सिस्टम है और एक सपोर्ट सिस्टम है। ये सपोर्ट सिस्टम से फिजिशियन को सपोर्ट होता है, सर्जन को सपोर्ट होता है, इंटेंसिविस्ट को सपोर्ट होता है, एनेस्थेसिस्ट को सपोर्ट होता है, रेडियोलॉजिस्ट को सपोर्ट होता है, पैथोलॉजिस्ट को सपोर्ट होता है। तो जो भी मेडिकल स्पेशलिस्ट है, सुपर स्पेशलिस्ट है, उनको असिस्ट करने का काम अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल करते हैं। और उनका कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर प्रोवाइड करने में, कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने में उनका रोल बहुत अहम रहता है। तो कौन से अलाइड हेल्थ साइंसेस की ब्रांच है? जैसे कि मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट है, जो पैथोलॉजी लैब या मेडिकल लैब में काम करते हैं, लैब मेडिसिन में काम करते हैं, जो पैथोलॉजिस्ट को या सुपर स्पेशलिस्ट को जो डायग्नोसिस का काम करते हैं उनको हेल्प करते हैं। रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजिस्ट है। ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, एनेस्थेसिया टेक्नोलॉजिस्ट है, जो सर्जन को, एनेस्थेसिस्ट को असिस्ट करते हैं। रिस्पिरेटरी थेरेपिस्ट है, जो इंटेंसिविस्ट को, जो पेशेंट आईसीयू में एडमिट होता है, वेंटिलेटर पे रहता है, रिस्पिरेटरी थेरेपी की जरूरत होती है, उनके उनके लिए इनका रोल बहुत अहम होता है। क्रिटिकल केयर टेक्नोलॉजी है, जो कार्डियोलॉजिस्ट को असिस्ट करते हैं या क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट को असिस्ट करते हैं जब भी पेशेंट कभी आईसीयू में एडमिट होता है, तो इनका रोल बहुत अहम होता है। परफ्यूजन टेक्नोलॉजी, ये एक अच्छा फील्ड है, जो हार्ट की बाईपास सर्जरी होती है, उसमें कार्डियक सर्जन को ये लोग असिस्ट करते हैं। ऑफ कोर्स बायोमेडिकल टेक्नोलॉजी, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग फील्ड जो है, ये भी बहुत ब्राइट करियर ऑफर करता है आपको। और जो फील्ड से मैं आता हूँ, जो डायलिसिस टेक्नोलॉजी है, उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बाद में बात करूंगा मैं। वो एक फील्ड है। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हमारे पास है जब भी हम अलाइड हेल्थ केयर की बात करते हैं। तो
ये एक गवर्नमेंट का डेटा है जहाँ पे कौन से कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं। एक इंडिया के लगभग 350 कॉलेजेस का सर्वे किया गया था। उसमें कौन से कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं। तो सबसे ऊपर है लैब टेक्नोलॉजी है, रेडियोग्राफी है, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी की बैचलर डिग्री है, डिप्लोमा कोर्सेस है, डायलिसिस टेक्नोलॉजी का डिप्लोमा है, डायलिसिस टेक्नोलॉजी की बैचलर डिग्री है, ऑप्टोमेट्री ऑप्थाल्मिक टेक्नोलॉजी है, एनेस्थेसिया टेक्नोलॉजी है, ऑप्थाल्मिक असिस्टेंट का एक कोर्स होता है। तो ओवरऑल ये तरीके के कोर्सेस अलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल के लिए बहुत सारे कॉलेजेस में ऑफर किए जाते हैं। तो कौन से कोर्सेज का ऑप्शन आपके पास है। आप सर्टिफिकेट कोर्स एक एक होता है, ये शॉर्ट टर्म कोर्स होता है, एक एक साल तक का कोर्स होता है। डिप्लोमा कोर्स होता है 1 या 2 साल का। या डिग्री होती है, ग्रेजुएट डिग्री जो बीएससी या बीओ जिसको बोलते हैं वो होता है। आप मास्टर डिग्री भी कर सकते हैं, इसमें बहुत सारे यूनिवर्सिटीज है जो मास्टर डिग्री ऑफर कर रही है। या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स होता है, जैसे कि हम भी इसमें से सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा कोर्स या डिग्री कोर्स और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स हम ऑफर करते हैं थ्रू द एएसडीटी इन इन डायलिसिस टेक्नोलॉजी। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि आप ये कोर्स चूज कैसे करें। क्या क्या क्राइटेरिया आप देखें कोर्स चूज करने के पर। तो सबसे अहम ये है कि आपका इंटरेस्ट क्या है, कौन से फील्ड में आप एंट्री करना चाहते हैं, कौन से फील्ड आपको अपील करता है, वो सबसे अहम है। उसके बाद आप कौन से इंस्टीट्यूट में आप कोर्स करने वाले हैं, वो कोर्स की क्रेडेंशियल क्या है, किसका एफिलिएशन है, वेदर दैट कोर्स इज एफिलिएटेड, whether that course is recognized, whether that course is recognized in industry। जैसे कि आप ये कोर्स करने के बाद इमीडिएटली आपको एम्प्लॉयमेंट मिले, इमीडिएटली आपका करियर स्टार्ट हो, ये आपको देखना जरूरी है। इंस्टीट्यूट का ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे है, वो इंस्टीट्यूट में क्या क्या इक्विपमेंट है, कैसे सिखाते हैं, इंस्टीट्यूट की फैकल्टी है जो टीचर्स है, उनका क्वालिफिकेशन क्या है, उनका क्रेडेंशियल क्या है, वो भी देखना बहुत जरूरी होता है। और सबसे अहम चीज ये है कि ये कोर्स आप क्यों करना चाहते हैं, वो आप थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट करना जरूरी है। और ये सब सवाल के जवाब आपको यदि सही मिलते हैं तो वो कोर्स करना, वो इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन लेके आपके करियर के जो एस्पिरेशन है उसको फुलफिल करना पॉसिबल होगा। तो अलाइड हेल्थ केयर में या हेल्थ केयर में करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी आपको क्या क्या है। आप स्पेशलाइज कर सकते हैं एक कोई स्पेशलिटी फील्ड में, जैसे कि कार्डियक सोनोग्राफी है, डायलिसिस टेक्नोलॉजी है, इमेजिंग टेक्नोलॉजी। इमेजिंग में आप जैसे कि देखोगे सीटी स्कैन होता है, दूसरे इमेजिंग टेक्नोलॉजी है, उसका आप देख सकते हैं। मतलब सुपर स्पेशलाइजेशन और स्पेशलाइजेशन के ऊपर आप जा सकते हैं। आप आगे चल के लीडरशिप रोल में आ सकते हैं, सुपरवाइजरी रोल, मैनेजरियल रोल पोजीशन आप अचीव कर सकते हैं इन दैट पर्टिकुलर डिपार्टमेंट। फॉर एग्जांपल, आप यदि डायलिसिस में आते हैं तो यदि आप अच्छा काम करते हैं, सर्विस अच्छे देते हैं, पेशेंट का ट्रीटमेंट आप यदि अच्छा करते हैं तो आपको सब लोग पसंद करने लगेंगे, आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। तो आप आहिस्ता आहिस्ता आगे चल के लीडरशिप रोल में आ सकते हैं, इंचार्ज बन सकते हैं, सुपरवाइजर बन सकते हैं, मैनेजर बन सकते हैं, क्वालिटी टीम में आ सकते हैं, या दूसरे जो टेक्निकल रोल्स है, जॉब रोल्स है, उसमें आप एंट्री कर सकते हैं। दूसरा एक ऑप्शन है, आपको ट्रेनिंग या एजुकेशन में यदि इंटरेस्ट रहेगा, लोगों को आप ट्रेन करना चाहते रहेंगे या एजुकेशन देना चाहते हैं, एजुकेशन फील्ड में आना चाहते हैं, तो वो भी एक एक ऑप्शन आपके पास ओपन होता है। रिसर्च अपॉर्चुनिटी है, अपने अपने कंट्री में भी ये बहुत सारा अभी हो रहा है, रिसर्च, फंडामेंटल रिसर्च हो रहा है, या क्लिनिकल रिसर्च आप बोल सकते हैं। उसमें भी आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो ये अलाइड हेल्थ केयर क्यों इम्पोर्टेंट है, अभी ये क्यों बढ़ रहा है, और आगे ग्रोथ कैसी होगी, इसके रेगुलेशंस क्या होगा, ये देखना भी बहुत इम्पोर्टेंट है।
हाल ही में तो 2021 में इंडियन गवर्नमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट में एक लॉ पास किया है, विच इज कॉल्ड एज नेशनल कमीशन फॉर अलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल एक्ट 2022। ये एक्ट के तहत, ये एक्ट के अंदर बहुत सारे, लगभग 56 ऐसे अलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशन है, वो दायरे में आ सकते हैं। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ये आपको इसीलिए बता रहा हूं मैं कि क्योंकि जब भी आप मेडिकल डिग्री करते हो, मेडिकल स्कूल से पास आउट होते हो, तो आपको ये मैंडेटरी बन जाता है कि आप मेडिकल, इंडियन मेडिकल काउंसिल से या स्टेट मेडिकल काउंसिल के अंडर आप रजिस्ट्रेशन करें, सो आपको वो प्रोफेशनल स्टेटस मिलता है। सिमिलरली, यदि डॉक्टर के लिए ये है, मेडिकल प्रोफेशन के लिए ये है, नर्सिंग प्रोफेशनल के लिए ये, डेंटिस्ट के लिए ये सब चीज है, तो व्हाई नॉट फॉर अलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशन? ये सोचते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने ये एक्ट पास किया है, विच इज कॉल्ड एज द नेशनल कमीशन फॉर अलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल एक्ट 2022। और ये रिसेंटली 2025 में इम्प्लीमेंट हुआ है, ऑपरेशन में आया है। इसके अंदर बहुत सारे अलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशन, जो 10 कैटेगरीज लिस्ट की गई है, जिसमें मेडिकल लैबोरेटरी है, ट्रोमा केयर है, फिजियोथेरेपी है, न्यूट्रिशन एंड डाइटिशियन साइंस है, ऑप्थाल्मिक साइंस है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, कम्युनिटी केयर, बिहेवियरल साइंस एक्सेट्रा, रेडियोलॉजी, इमेजिंग, मेडिकल टेक्नोलॉजी, फिजिशियन एसोसिएट, जो यहाँ पे डायरेक्ट पेशेंट केयर की जो बात होती है वो मेडिकल टेक्नोलॉजी या फिजिशियन एसोसिएट में आता है। और जो राजेश सर ने भी बात की, हेल्थ इंफॉर्मेशन, जो आईटी का एप्लीकेशन है हेल्थ केयर में, वो भी यहाँ पे आता है। तो मेडिकल टेक्नोलॉजी के फील्ड में जैसे कि बायोमेडिकल इंजीनियर है, मेडिकल इक्विपमेंट टेक्नोलॉजिस्ट है, फिजिशियन एसोसिएट है, कार्डियोवास्कुलर टेक्नोलॉजिस्ट है, परफ्यूजनिस्ट है, रिस्पिरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट है, ईसीजी या ईईजी टेक्नोलॉजिस्ट है। ऐसे बहुत सारे ट्रेड या बहुत सारे कैटेगरी इसमें आती है। अम, और थोड़ा सा मैं विस्तार में बात करूंगा डायलिसिस थेरेपी और डायलिसिस टेक्नोलॉजीज के बारे में अगले फ्यू मिनट्स में। तो ये सब बातें, तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि ये इंडियन गवर्नमेंट ने ये लॉ पास किया है, उसके अंडर जो अलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल है, उनका रजिस्ट्रेशन होना, उनकी रजिस्ट्री बनना, उनको एक प्रोफेशनल स्टेटस देना, ये इसके अंदर आ जाएगा। तो हमारे कंट्री में भी ये थिंग्स आर मूविंग इसमें। जैसे कि हम जानते हैं कि हेल्थ केयर की बात करें, मेडिकल की बात करें, तो एमबीबीएस पास करा, एमडी करो, यही हमारा सोच होती है। लेकिन जब कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर की हम बात करते हैं, कंप्लीट हेल्थ केयर की बात करते हैं, तो बहुत सारे प्रोफेशनल्स उसमें आते हैं, बहुत सारे कैटेगरीज उसमें आते हैं। तो अब तक जो अलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशन, जो रजिस्ट्रेशन उनका नहीं होता था या स्टैट्यूटरी रिकग्निशन उनको नहीं होता था, तो ये एक्ट के तहत, अलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल एक्ट 2021 के अंडर, ये सब प्रोफेशन रजिस्टर कर पाएंगे और उनको एक एक प्रोफेशनल स्टेटस मिल जाएगा। हम हालांकि इंडिया की बात करें, अपने कंट्री की बात करें, हमारे देश की बात करें, तो हालांकि हमने अभी अभी एक अमृत आजादी का अमृत महोत्सव हमने मनाया। नाउ वी आर मोर देन 75 ईयर ओल्ड कंट्री। तो ये आजादी के 75 ईयर्स में हमने बहुत सारे प्रोग्रेस देखी है, हर एक फील्ड में प्रोग्रेस देखी है। वो इंफ्रास्ट्रक्चर का ले लो, साइंस टेक्नोलॉजी का ले लो, स्पेस टेक्नोलॉजी का ले लो, या कौन सी भी चीज की बात करो, तो बहुत सारा प्रोग्रेस हमारे कंट्री ने किया है लास्ट 75 ईयर्स में, जब से हम इंडिपेंडेंस हमें मिला। और हमारी कंट्री एक मोस्ट पॉपुलस कंट्री है। लगभग 150 करोड़
हम होने जा रहे हैं, टोटल पॉपुलेशन 150 करोड़ तक पहुंच जाएगा। अम, हम कहते हैं कि हम एंगेज नेशन है, हमारा यंग पॉपुलेशन जो है, यूथ जो है, वो सबसे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा यूथ हमारे पास है। तो वर्किंग फोर्स हमारे पास है, यंग फोर्स हमारे पास है। ये सब बातें कहने के लिए बहुत अच्छी लगती है। और लेकिन जब भी हेल्थ केयर की बात करते हैं, तो ये रिसेंट आर्टिकल था जो लैंसेट जैसे लीडिंग जर्नल में पब्लिश हुआ था। वहां पे उन्होंने एक हमारे हेल्थ केयर सिस्टम के बारे में जो लैक्यूना है या जो खामियां है उसके बारे में हमें अवगत किया था। वो ये लैक्यूना ये है कि हमने देखा कि कोविड के टाइम बहुत अच्छा काम किया, लेकिन कोविड के टाइम हमारे हेल्थ सिस्टम में जो भी खामियां थी उससे भी हमें अवगत कर दिया, क्या प्रॉब्लम्स है, कहाँ हम कम गिरते हैं। तो सिमिलरली जो टोटल वर्कफोर्स जो जाए चाहिए, ट्रेन्ड वर्कफोर्स जो हमें चाहिए, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के स्टैंडर्ड से है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के स्टैंडर्ड के हिसाब से यदि हम देखें, तो एवरी 10,000 पॉपुलेशन के लिए लगभग 45 हेल्थ केयर प्रोफेशनल की जरूरत है, हेल्थ केयर वर्कर्स की जरूरत है। लेकिन हमारी यदि बात करें, लेटेस्ट डेटा यदि हम देखें, तो हमारे पास लगभग 10,000 पॉपुलेशन के लिए सिर्फ 21 हेल्थ केयर प्रोफेशनल है। तो यदि हमें वो लेवल पे पहुंचना है, तो बहुत सारे लोगों को ट्रेन करना पड़ेगा, अलाइड हेल्थ केयर में हो या मेडिसिन में हो, सर्जरी में हो, हेल्थ केयर वर्कर्स हो। ये बहुत सारे डिमांड, जैसे कि हमारा पॉपुलेशन बढ़ रहा है, उसके हिसाब से ये आएंगे। और फ्यूचर की यदि बात करें हम, तो अभी हम यंग नेशन है, लेकिन कुछ सालों के बाद जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि 2047 तक हम डेवलप कंट्री बन जाएगी। अ, हम यदि आज की बात करें तो हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की कतार में खड़े हैं। तो थिंग्स आर प्रोग्रेसिव, लेकिन वो प्रोग्रेस के साथ साथ दूसरे चीजें जो जो है, हेल्थ केयर का वर्कफोर्स है, उसके बारे में भी थोड़ा विचार होना जरूर है। वी ऑल्सो नीड टू थिंक अबाउट इट। तो ये अ, खामियां है हमारे यहाँ की, कि हमारे पास इनफ वर्क फोर्स नहीं है, हमारे पास इनफ हेल्थ केयर वर्कर्स नहीं है, इनफ डॉक्टर्स नहीं है, इनफ नर्सेस नहीं है, इनफ अलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स नहीं है। हालांकि टोटलिटी में यदि आप बात करें, तो आपको आप देखेंगे कि हर जगह पे, यूएस में भी यदि आप बात करेंगे तो बहुत सारे इंडियन ओरिजिन के डॉक्टर्स वहां पे हैं। नर्सेस नर्सेस की यदि बात करें, तो आप जहां जाओगे वहां पे आप इंडियन नर्सेस मिलेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि इंडियंस आर एवरीवेयर, इंडियंस आर टैलेंटेड, लेकिन अपने कंट्री में क्या है? अपने कंट्री में यदि ये स्टैंडर्ड के हिसाब से होता है, यदि ये क्वेश्चन कोई पूछे, तो उसका आंसर नहीं है। हमारे पास इनफ वर्कफोर्स नहीं है। तो हेंस देयर इज अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी इन दिस फील्ड। अलाइड हेल्थ केयर में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। थोड़ी सी बात करते हैं डायलिसिस के बारे में, जो राजेश सर ने भी बात किया था। आपको ये बता दूं कि डायलिसिस ऐसी एक ट्रीटमेंट है मॉडर्न मेडिसिन की, एक रिमार्केबल अचीवमेंट है लास्ट सेंचुरी के, जिससे डायलिसिस यदि आप पूछे तो ये फर्स्ट ऐसा फंक्शन है जो ऑर्गन फंक्शन को रिप्लेस करता है। मतलब जिसी की किडनी खराब होती है, किडनी का फंक्शन आर्टिफिशियली करने का काम ये ट्रीटमेंट करते हैं। मतलब किसी भी किडनी खराब होती है, किडनी किडनी काम करती है, आपको अवगत होगा कि किडनी एक वाइटल ऑर्गन्स है। यदि वाइटल ऑर्गन्स काम नहीं करता है, तो लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन पैदा कर सकती है, हो सकती है। लेकिन यदि किसी का किडनी काम नहीं करता है, तो वो पेशेंट को हम लोग सालों साल एक ट्रीटमेंट का यूज करके, एप्लीकेशन करके उनको सालों साल जिंदा रह सकते हैं। ये दूसरे वाइटल ऑर्गन में पॉसिबल नहीं होता है। जैसे कि किसी का यदि हार्ट खराब होता है, हार्ट काम करना छोड़ देता है, तो उनको आर्टिफिशियली हार्ट के ऊपर सालों साल जिंदा रखना पॉसिबल नहीं होता है। किसी के लंग्स यदि फेल होते हैं,
तो उनको सालों साल वेंटिलेटर पे रख के जिंदा रखना मुश्किल होता है। लेकिन डायलिसिस एक अकेला ट्रीटमेंट है जहां पे डायलिसिस किडनी का फंक्शन आर्टिफिशियली हम करके पेशेंट को सालों साल जिंदा रख सकते हैं। So dialysis becomes a rehabilitative therapy for a chronic kidney disease patient। जो पेशेंट को क्रोनिक किडनी डिसीज की बीमारी है उनके लिए हम अच्छा सा रिहैबिलिटेट कर सकते हैं उनको डायलिसिस की ट्रीटमेंट देके। और पूरा वर्ल्ड की बात करें तो मिलियंस ऑफ पेशेंट्स आर देयर हु आर डिपेंडेंट ऑन अ डायलिसिस टू सस्टेन देयर लाइफ। मतलब डायलिसिस ट्रीटमेंट के वजह से ये लोग अपना लाइफ सस्टेन कर रहे हैं, लाइफ उनका कंप्लीटली रिहाब हो रहा है और अच्छा क्वालिटी ऑफ लाइफ वो जी रहे हैं। एक उनका वाइटल ऑर्गन नॉन फंक्शनल होने के बावजूद वो आर्टिफिशियल किडनी का हेल्प लेके, आर्टिफिशियल ट्रीटमेंट से जैसे डायलिसिस है उसका हेल्प लेके उनका लाइफ सस्टेन हो सकता है। इंडिया की यदि बात करें तो लगभग आज की तारीख में लगभग 34 मिलियन सेशन पर एनम जरूरी है। मतलब लगभग 3 करोड़ 40 लाख सेशन एक साल में जरूरत पड़े। तो आप इमेजिन कर सकते हो, तो 3 करोड़ 40 सेशन यदि डिलीवर करने हैं, इतने पेशेंट को यदि ट्रीट करना है तो कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी। डायलिसिस मार्केट की यदि बात करें हम, तो एट प्रेजेंट इट्स वैल्यूड एट $5 मिलियन एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय 8.83 CAGR से वो ग्रो कर रहा है। सो बाय 2030 दिस मार्केट विल ग्रो टू 11.3 बिलियन। सो ये ग्रोथ फास्ट हो रहा है और ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी बहुत है। और दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे है कि आज की जो डायलिसिस ट्रीटमेंट हम दे रहे हैं, मॉडर्न डायलिसिस ट्रीटमेंट, इट मेक्स पॉसिबल टू इंक्रीज द लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ द पेशेंट। मतलब पुराने जमाने की बात करें 30-40 इयर्स बैक, 4 डिकेड्स अगो, तो डायलिसिस के पेशेंट की लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा नहीं थी। आज की तारीख में जो डायलिसिस ट्रीटमेंट जो हम दे रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी हमें अवेलेबल है, उसके हिसाब से यदि देखें, उसका एप्लीकेशन यदि हम ठीक से करें, पेशेंट का केयर यदि हम ठीक से करें, तो पेशेंट की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। यदि आप देखेंगे तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जो लास्ट 25 ईयर्स से, 30 ईयर्स से, 40 ईयर्स से दे आर सर्वाइविंग ऑन डायलिसिस। सो ये डायलिसिस पॉपुलेशन ग्रो हो रहा है। नए डायलिसिस पेशेंट जो आ रहे हैं, जो लाइफस्टाइल डिसीज की वजह से, जो राजेश सर ने पहले ही बताया, तो नया पॉपुलेशन तो डायलिसिस पॉपुलेशन तो आ ही रहा है। इट इज एस्टिमेटेड दैट एवरी ईयर 2,20,000 पेशेंट ऐड होते हैं पूल में, और पुराने वाले जो पेशेंट है, तो आप इमेजिन कर सकते हो तो कितने डायलिसिस के पेशेंट या अपने कंट्री में रिक्वायरमेंट है, जो पेशेंट है जिनकी रिक्वायरमेंट है। और अभी आज की तारीख में गवर्नमेंट का सपोर्ट भी मिल रहा है, एक्सेसिबिलिटी बढ़ रही है। बहुत सारे स्टेट्स में तालुका लेवल पे डायलिसिस सेंटर हो रहा है। पुराने जमाने में इवन इफ यू लुक एट 20 इयर्स बैक और 25 इयर्स बैक, डायलिसिस के ट्रीटमेंट बड़े शहर में भी, बड़े शहर में, बहुत सारे बड़े शहर में ये अवेलेबल नहीं थी। गिने चुने शहर थे वहां पे ये अवेलेबल थी। लेकिन आज की यदि बात करें तो तालुका लेवल पे छोटे गांव में डायलिसिस सेंटर बन रहे हैं, वहां के डायलिसिस पेशेंट के लिए ट्रीटमेंट मिल रही है। तो एक्सेसिबिलिटी बढ़ रही है, अफोर्डेबिलिटी बढ़ रही है, गवर्नमेंट का सपोर्ट बढ़ रहा है, उसके लिए डायलिसिस का पॉपुलेशन ग्रो हो रहा है। इसके लिए ये फील्ड में वर्कफोर्स की डिमांड बढ़ती ही जा रही है और ये बढ़ती ही रहेगी। डिमांड हमेशा यहाँ पे बढ़ती रहेगी। तो यदि आप डायलिसिस टेक्नोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं तो डायलिसिस टेक्नोलॉजिस्ट क्या करते हैं? डायलिसिस टेक्नोलॉजिस्ट बेसिकली नेफ्रोलॉजिस्ट को असिस्ट करते हैं, किडनी फिजिशियन को असिस्ट करते हैं डायलिसिस ट्रीटमेंट बनाने के लिए। तो यहाँ पे दो रोल है, मैन एंड मशीन मैनेजमेंट जिसको हम बोलते हैं। मैन मैनेजमेंट मतलब पेशेंट की केयर करना, पेशेंट के मेडिकल प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना, पेशेंट के मेडिकल प्रॉब्लम को असिस्ट अंडरस्टैंड करके उनको क्या करना चाहिए, उनकी सेहत कैसी अच्छी रहे वो देखना।
दूसरा पार्ट होता है मशीन मैनेजमेंट, जो कि ये आप यहाँ पे देख रहे हैं, डायलिसिस की मशीन है। ये अल्ट्रा मॉडर्न मशीन है, मेडिकल इक्विपमेंट है, मेडिकल डिवाइस है। इसको अंडरस्टैंड करना, इसका ऑपरेशन करना, इसका ट्रबल शूटिंग करना, इसमें यदि कुछ प्रॉब्लम होता है वो अंडरस्टैंड करना। सो डायलिसिस टेक्नोलॉजिस्ट को दोनों चीजों, मतलब टेक्निकल एक्यूमेंट भी होना चाहिए, क्लिनिकल एक्यूमेंट भी होना चाहिए। तो हमारे जो कोर्सेस है ये आपको टेक्निकल एक्यूमेंट तो देता ही है, क्लिनिकल एक्यूमेंट, उसके अलावा जो सॉफ्ट स्किल है वो भी आपको, जैसे कि कम्युनिकेशन है, पेशेंट से कम्युनिकेट करना, पेशेंट के रिलेटिव के साथ कम्युनिकेट करना, मेडिकल स्पेशलिस्ट के साथ कम्युनिकेट करना, उनके जो ऑर्डर्स है वो अंडरस्टैंड करना, ये बहुत अहम चीजें हैं। तो एक अच्छा डायलिसिस टेक्नीशियन बनने के लिए ये जो टेक्निकल एक्यूमेंट, क्लिनिकल एक्यूमेंट, सॉफ्ट स्किल, आईटी स्किल ऑफ कोर्स, ये सब की जरूरत होती है। तो यहां से ग्रोथ कैसे रहेगा, क्या क्या ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है? तो दो तीन ऑप्शंस यहाँ पे है, जैसे कि क्यूरेटिव थेरापेटिक सर्विस में आप जा सकते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट पेशेंट केयर में आपका इन्वॉल्वमेंट रहेगा। अ, आप यहाँ पे सेंटर के इंचार्ज बन सकते हैं, मैनेजर बन सकते हो, क्वालिटी मैनेजर बन सकते हैं। या यदि आप सोशल एडमिनिस्ट्रेशन में जाना चाहते हो तो आप ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर, वैस्कुलर एक्सेस कोऑर्डिनेटर, क्लिनिकल कोऑर्डिनेटर, ये जॉब रोल आपको मिल सकते हैं। एकेडमिक्स में ऑफ कोर्स ट्रेनिंग, आप टीचर बन सकते हो, ट्रेनर बन सकते हो, ट्यूटर बन सकते हो। तो ये भी ऑप्शन एकेडमिक्स में, यदि आपका इंटरेस्ट टीचिंग है तो ये आपके लिए एक ऑप्शन हो सकता है। अ, उसके अलावा यदि आप मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री में आ सकते हो, आना चाहते हो, तो ये भी ऑप्शन आपको अवेलेबल है, जैसे कि प्रोडक्ट स्पेशलिस्ट, सेल्स मैनेजर, रीजनल मैनेजर, ये सब ऑप्शन आपको अवेलेबल है। तो अलाइड हेल्थ केयर की यदि बात करते हैं तो बहुत सारे ऑप्शंस है। आप किडनी डायलिसिस में आना चाहते हो तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन है, और ये ग्रोइंग फील्ड है। यहाँ पे आपको हेल्थ केयर में पर से जॉब मिलना या जॉब रिटेन होना, ये प्रॉब्लम नहीं होती है। एक कांस्टेंट और स्टेबल करियर आपको ये फील्ड ऑफर करता है। तो यदि आप इसमें इंटरेस्टेड है, आप हेल्थ केयर में आना चाहते हो, और फॉर सम रीजन यू हैव मिस्ड योर बस टू एमबीबीएस, आपको मेडिकल स्कूल में एडमिशन नहीं मिला है, और आप हेल्थ केयर में अपना करियर बनाना चाहते हो, तो यू ऑल आर वेलकम। मेरे बाद मेरी कलीग नीतू है, वो आपको एपेक्स स्कूल ऑफ डायलिसिस टेक्नोलॉजी में कौन से कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं, उसके बारे में आपको बता देंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड अटेंशन। Thank you, Sudhir sir. I थैंक think यू, लेजर। I think a lot of queries, a lot of confusion, which all of us, when I was young and in the college, everyone has confusions is resolved today because with your experience, you have taken us through all that is possible to the one where you are expert. We are providing our expertise, which is into dialysis technology. And it is really good because I am seeing a lot of comments coming and people are asking a lot of questions. And yes, we are going to address all these questions, but I urge everyone to keep asking these questions, and my team is noting them so that at the end we will have a Q&A session. Sudhir sir, I would request you to be there for a few Yeah, minutes sure, for that. sure. Yeah, yeah. And we will address all these questions individually, one by one. So please sharing this. Now, not only the questions, but there is another good news which I am sharing with all the students who have joined is that now sir mentioned about dialysis technology. And further, we are going to talk to you about what are the courses which we offer. And if today itself, if the students are going to create an inquiry, talk to our team members, then there is a very special gift which we are going to give it to them.
Sir, this gift will be really very, very interesting because it is going to help them across their life and not only just for their course. So I hope you all are excited and you are going to be there live till the end of this live session and keep posting questions and also inquire about the course and its details at the end of the session. As you mentioned that government now is going to address the issue of professional tag to each of these allied health services. Is it Right. already started or is it there? As in, what is the status? And is it across the country? It is already started. In fact, few states they have already started their own paramedical council decade ago. Like if you ask me, Kerala was the first state. Then it's there in Madhya Pradesh also. Maharashtra also started a few years back. So most of states they have adopted their state paramedical council. They have a state paramedical council law, etc. But now what central government doing is now is they are putting all this state paramedical council under one umbrella, and that would be under National Commission for Allied Healthcare Professional. And all allied healthcare professionals, including paramedics, will come under this law. So, so it is not so long that everyone who is working as a allied healthcare professional, everyone who is working as a paramedical professional, it would be mandatory for everyone to get uh, such a registration from either from the state paramedical council or allied healthcare commission, which is a national body. That's really a good news. But how is it going to benefit the students? As in, will it benefit or it is just like an Aadhaar card? I don't think so. It will be only Aadhaar card. For example, if somebody passes from medical school, MBBS or whatever degree they get, so after that degree, even for a dentist, they have a dental council. For nurses, they have a nursing council. For physiotherapists, they have a physiotherapy council. So all those professional, they have their council. So it gives them a professional recognition. It also gives them some accountability. You know, so once they come under a national commission for allied healthcare professional, they will get professional recognition. With that professional recognition, some accountability will come, some code of conduct will come. So that will enhance the quality of service, quality of care that we deliver to the patient. That So will have that a huge impact on correct. the health Correct. profession. Yeah, So that means the way in our earlier days we used to call कि मेरा बच्चा वकील है, मेरा बच्चा इंजीनियर है, डॉक्टर है, right. वैसे a lot of people will be able to call their kids with some stamp that Yes. he is a Yeah. allied health professional. Something like Yes. this will happen in the future is what you are Right. 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 talking. That's a Absolutely. great thing because Absolutely. then you will get Yeah. recognition as what service you are offering. Yeah. So people don't have to talk that कि मैं ये करती हूँ या ये करता हूँ. People will straight away Right. very proudly say that कि मैं allied health Right. professional हूँ or something like that. Yes. Yeah. That's It a would very good be news. professional recognition, in fact. Absolutely. And sir, my question is that in India, is choosing healthcare still very expensive? Like, if not MBBS, if I choose any other healthcare courses, is it very, Yeah. very expensive or it's good comparatively to other industry? Actually, this education is not so expensive, but again, it depends on the institute to institute. In a private institute, fee would be different. Fee pattern is different. In a government institute, fee pattern is different. But if you compare other courses like MBA or engineering course or medical course, then if you compare that fee, it's almost at par or less than what is there in other field. Excellent. And then also the earnings are at par. So that means it is benefit that you are not More going to than that, invest. right? More than that, uh, career is assured here. Correct. I mean, I have not seen any hospital closing down, or like it happens in some industry. Industry is IT. closed down, the layoff and all. Those things Correct. I have not seen in this industry. That's a very big security in today's Right. world. The students So need to first have their security, then the salary hikes which they have in mind.
That is the So first if thing. you ask me about the job security, then healthcare offers the best job security in all field. Agreed, agreed. So there will be more such questions and interactions we will be now moving forward. You heard from doctors, you heard from a professional and the expert like Sudhir sir. Now going back towards other part of medical science, which is pathology, where every one of us go get blood tests done or scans done. Similarly, with Apex with AKC, we have our own pathology lab, and the lead of that pathology lab is going to address to all of you to share some knowledge that what are the career options in that field and what all you can do further. So I would ask my team to now let Dr. Deepa Pahade come into this Facebook Live through her recorded video and share her insights. Thank you. Hello, good morning everyone. I'm Dr. Deepa Pahade, working as a consultant pathologist at Apex Kidney Care. My pathology journey started after completing my HSC in science, then doing a MBBS course 4.5 years as an undergraduate in a medical college, then doing a 3 years of residency in pathology, covering both the clinical and anatomic pathology. And then I began my professional journey in a private pathology laboratory. Pathology is vital to healthcare. It is the backbone of all decision making. Pathology helps in enabling accurate diagnosis. It helps in guiding the treatment strategy, whether it is surgery or a medical treatment. It helps in diagnosing the diseases early for good patient outcome. It also helps in differentiating various similar conditions. Apex Kidney Care is a fully automated world-class laboratory specializing in kidney diagnostics. Test packages are curated by the nephrologist to ensure comprehensive and cost-effective treatment to all the patients. The lab emphasizes on accuracy, reliability, and patient convenience. Our mission is to provide high-quality diagnostics, helping in patient cure and diagnosis. I would like to brief upon the various career options in pathology. You can become a pathology laboratory technician. You will have to do a DMLT or a MSc DMLT or a BSc DMLT, which is a diploma in laboratory medical technology. That course is done after 10th or 12th standard. It's a 2 years course, can be done from a private or a government institute. You can become a laboratory technician who can process the blood samples of the patients or the tissue samples. You can become a histopathology technician who will do the processing of the patient tissues and help in microscopic examining. You can also become a microbiology technician who can process samples for culture and sensitivity. You have several career options, but remember, choosing a healthcare profession is a life-changing decision. So align your passion with purpose and serve with empathy and skill. The right choice can shape lives, including your own. Thank you so much. Great. That was Dr. Deepa, and I think she brought another paradigm towards this event, that it is just not dialysis technology which we are talking or any other career, but diagnostic. It's such an important aspect because till the time the doctors or the experts don't have the vitals, the numbers on what exactly is happening, it is very difficult for the doctors to diagnose. So the students will be able to choose if they want to get into this career also. And so that was what Dr. Deepa Pahade mentioned. Now, moving forward, let's focus deep dive a little more on exactly what are those exact courses, which level of courses, whether you are in 12th standard, you are doing BSc, or you are still in 10th standard, and everything about the course. For that, I would like to now invite Neetu Dubey ji, who is a program coordinator and has been leading ASDT since many years, and she will take you through across all these details. Neetu ji, over to you. Thank you. Now my slide is visible now. It's visible, Nitu. Yeah. Go ahead. So myself Neetu Dubey, and on behalf of Apex School of Dialysis Technology, once again I welcome you all of you. Okay, so let's talk about the organization and the Apex School of Dialysis Technology. आप सभी ने सुना होगा, हमारे सीईओ सर ने मिस्टर इंद्रनील सर ने बताया कि एपेक्स किडनी केयर
provides a complete nephrology care. Okay. So under this ecosystem, there are different departments where we work. In that, इसमें से एक डिपार्टमेंट है, that department is called academic department, and this department is also known as Apex School of Dialysis Technology. Apex School of Dialysis Technology provides multiple courses in a dialysis. So let's go through the ASDT journey. ASDT begins in 2010 with the autonomous program, and it is an honor to share here my professional career as an academician. I started my journey is also begin with the ASDT only. So this is the program which we have started with the autonomous program. It was a short-term program. Then later on, we recognized with the university to provide the short-term courses certification. Then later in a 2012, we have associated with the Tata Institute of Social Science, which is a diploma in dialysis technology. We started with the program diploma in dialysis with the foundation course, which is required in a dialysis. Things. So the program which was we have started, it was a 2 years programs or a 1 year certification programs. Then later on we realized that based on the industry requirement, जैसा अभी आपने सुना डॉक्टर राजेश कुमार सर के लेक्चर्स में, सुधीर बगाराव सर के लेक्चर्स में, कि इंडस्ट्री का रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग स्किल प्रोवाइड करना इज हाउ मच इम्पोर्टेंट. सो बेस्ड ऑन दैट वी थॉट दैट कि जो हम प्रोग्राम्स दे रहे हैं उसको अपग्रेड करना भी बहुत इम्पोर्टेंट है. एंड विद द एसोसिएशन ऑफ द टाटा इंस्टीट्यूट we propose the course in a degree form like BWalk in a dialysis technology, and we started our first batch for a degree in a 2024. Then later, this program was renamed by it's recognized by the university, and it's also recognized, confirmed by the UGC government, and the program is renamed with the BSc in Dialysis Technology. Now we are offering the BSc in Dialysis Technology with the multiple entry and exit options. Later on, our Apex School of Dialysis Technology, associated with the Maharashtra State Board of Skill, Vocational Education and Training, there we provide courses like short-term courses, certificate and diploma. ASDT till now, we have trained more than 1,500 candidate. Those are in this field. So as you heard from Sudhir sir, Dr. Rajesh Kumar sir, आज के दौर में हमें सिर्फ डिग्री करके उतना इनफ नहीं है, उतना बेनिफिट नहीं है जो हम किसी स्किल में आ सके. सो अलोंग विथ डिग्री और अ डिप्लोमा और अ सर्टिफिकेट, स्किल डेवलपमेंट करना बहुत जरूरी है. एम्पावरमेंट के लिए क्या क्या होना चाहिए? फर्स्ट थिंग, स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए. अलोंग विद दैट स्किल कमर्शियल वाइबल भी होना चाहिए, ताकि आपको आपका ड्रीम भी फुलफिल कर सके. इन दैट केसेस ये सब सिनेरियो को, जैसा कि सर ने गाइड किया कि करियर प्रोस्पेक्टिव है, और जहां पे स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग ज्यादा हो, जहां पे स्किल ट्रेनिंग ज्यादा आपको मिले, इस चीज को हम ध्यान में रखते हुए ये सब कोर्सेज जो डायलिसिस से रिलेटेड है वो लॉन्च किया है. So let's go through our programs. We offer certificate course in dialysis technology, and this is the short-term program. So it's a very short-term, like the 3 to 6 month का program है. और ये program specially design किया गया है working professionals के लिए. Those who are already in a same field, or those who are in a nursing field, they wish to join or they wish to specialize this training with the special dialysis care.
So in that cases, what they will get, so they will get their professional knowledge. They will get their to understand the things, what things comes under this program. Along with that, also they will get, जैसा sir ने बताया, professional recognition through the Maharashtra Paramedical Council. So they can upgrade their knowledge, they can go through the skill, what is required in a dialysis as a clinical, technical, and along with that, the प्रोफेशनल रिकॉग्निशन टू। द सेकेंड इज जो कोर्स है हम प्रोवाइड करा रहे हैं वो दैट इज डिप्लोमा इन डायलिसिस टेक्नोलॉजी। डिप्लोमा इन डायलिसिस टेक्नोलॉजी, द प्रोग्राम ड्यूरेशन इज 2 years. Those who are completed HSC or those who have completed SSC 10th किया हुआ है and after that they have completed the certificate in dialysis technology, the students are eligible for diploma in dialysis technology. और ये डिप्लोमा इन डायलिसिस टेक्नोलॉजी का जो रिकॉग्निशन है आफ्टर कंप्लीशन, इट इज विद द महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड दैट, हमने बात किया सर्टिफिकेट की, हमने बात किया डिप्लोमा की। सो हमने बात किया इधर डिप्लोमा भी कर रहे हैं आप तो भी यू कैन अपग्रेड योर थिंग्स विद द डिग्री ऑल्सो। तो द डिग्री प्रोग्राम इज कॉल्ड बैचलर ऑफ साइंस इन डायलिसिस टेक्नोलॉजी। The student who have completed their HSC science or equivalent, they are eligible for this program, and the degree duration will be for 3 years. There will be a multiple entry and exit option in a degree program. So we have talked about the certificate, diploma, bachelor. Along with that, we got the inquiry, many is inquiry that ki those students, those who have completed BSc, somehow initial stage में जैसा प्रीतम जी ने बताया कि हमें पता नहीं होता है किस कहाँ पे जाना है, कहाँ पे एडमिशन लेना है। सो व्हेन वी डोंट नो वेयर टू गो, द ऑप्शन इज मैं जाता हूँ चलो ठीक है एटलीस्ट बीएससी तो एडमिशन ले लेते हैं क्योंकि इस साल मुझे कहीं पे मिला नहीं एडमिशन या मैं नहीं गया। So those who are completing their BSc, after completion they think that कि इसके बाद ऐसा कोई प्रोग्राम होना चाहिए जिसमें हम स्पेशलाइजेशन करें, बिकॉज हमने इनिशियल साइंस की थिंग्स ग्रेजुएशन में पढ़ी है, उसके बाद कुछ स्पेशलाइजेशन करें। फॉर देम स्पेशली दिस इज द बेस्ट ऑप्शन पीजी डिप्लोमा इन डायलिसिस टेक्नोलॉजी। जो कैंडिडेट ने बीएससी किया हुआ है, जो कैंडिडेट ने डायलिसिस बी वॉक किया हुआ है, या जो बीएससी नर्सिंग है उनको स्पेशलाइजेशन करना है, और या फिर जिन्होंने बीएससी कंप्लीट किया हुआ है डायलिसिस टेक्नोलॉजी में, सो दे आर एलिजिबल फॉर दिस प्रोग्राम। एंड दिस पीजी प्रोग्राम इज only a 1 year duration, and there will be the combination of a theoretical and the project part will be semester wise in a distribution. So it's all about the program which we are offering under the our courses under our department. So let's talk little bit, talk brief about the diploma। जैसे हमने बात किया कि डिप्लोमा एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है जिसमें स्टूडेंट्स को विद इन 2 years इफ यू वांट कि अगर मैंने साइंस नहीं लिया है और क्या मैं अपना करियर इसमें बना सकता हूं, तो यस दे हैव ऑप्शंस, दे कैन गो फॉर अ डिप्लोमा कोर्स, and after completion of diploma also they can get the recognition, they can get their job, and they can do well in a dialysis industry. So diploma course I mentioned it earlier also, this is the recognized and approved by the Maharashtra state board, and the course is recognized by the paramedical council. It means the completions, once you will complete your diploma 2 year, you will get the awarded by the diploma, and you can get the registration of that certificate. This program is fully job specific program, as I have mentioned in first slide only कि skill होना कितना important है। In a that keeping on a that things in a mind, all our programs which we have designed, it is a job specific. It means it's the on the job training wise programs. You will not get only the theory part here. You will not get only the every Monday to Saturday theoretical class here.
You will have to the combination of a theory plus practical. Practical, it means not a lab kind of thing. Practical, it means purely you will be assigned a practical center, you will be assigned the on the job training center. In a dialysis unit, you will go in a dialysis unit, you will work under the mentorship of seniors. Okay, so you will learn things in a actual real field, not in a practical lab. So once we start first day of course, you will get the exposure of theoretical part, along with that your on the job training center. So, and the courses which we have designed, and it is running by the MSBSBET, it's designed by the Apex School of Dialysis Technology. So now, moving for the BSc programs, let's talk about the BSc in Dialysis Technology, which we are offering in association with the Tata Institute of Social Science. The program, it means the degree programs. It is a 3 years degree program. और डिग्री प्रोग्राम का जो अप्रूवल है दैट इज यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड डिग्री, एंड द प्रोग्राम क्यूरिकुलम जो डिजाइन किया गया है दैट इज अलाइंड विद द NSQF लेवल. आई एम श्योर आपने सुधीर बगारावर का सर का स्लाइड बहुत अच्छे से देखा होगा, एंड सर हैज talking about the where you can go, what you can choose, which career you can choose. You will get the broad way to choose your career कि कहाँ पे आपको जाना है after completing of this course. In a that way, there is the mention was the NSQF level. NSQF level, when you will complete one level, for example, you are appearing for the first year and you are completing your first year certificate programs. So itself first year, once you will complete a semester 1 and semester 2, you will recognized, you will get your certificate after completion of first year. So that level will complete level 4.5, NSQF level 4.5. In the same way, once you will complete your second year, it means semester 3 and 4. So then you will be you will be a diploma holder. You will get your certificate as a diploma in a completion of level 5. Then once you will complete your level 5.5 NSQF level, then you will be awarded as a dialysis technology degree, bachelor degree for this program. So there are the different level. Once you complete the 4.5, then you will be eligible for a 5. Then you will complete for NSQF level 5. Then you will be eligible for a 5.5. And after that, you can choose your career for higher education as well. So as every individual year, you will get something in your hand like a certificate, diploma, and the degree. And in the same way, here also the curriculum was designed by the Apex Kidney Care and Apex School of Dialysis Technology. सो अभी आप सभी लोग को ऐसा लग रहा होगा कि हमने कोर्स बताया है, ये कोर्स है, इस कोर्स का रिकग्निशन है, ड्यूरेशन क्या है, बट इसके साथ साथ ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आप अगर कोई करियर चूज करते हो, सी कोर्सेज सभी लोग प्रोवाइड करते हैं, बट कोर्सेज का रिकग्निशन कहाँ से अफिलिएशन है, एंड उसके साथ साथ आर यू गेटिंग द स्किल ट्रेनिंग, is that because this is the most important thing where we focusing on that कि skill development करना student में कितना important है. So so on that basis, just why you choose our program, little bit about that. We offer the courses in a hybrid classes. It means all the domain classes which we conduct, it will be offline, because हम ये चाहते हैं कि जो आपके डोमेन नॉलेज है, स्पेशली डायलिसिस के जो कोर्सेस रहेंगे, जो डायलिसिस का सब्जेक्ट्स रहेगा, उसके लिए आपको ऑफलाइन लेक्चर्स के लिए आना पड़ेगा. दैट मे बी वंस इन अ वीक और दैट मे बी अ ट्वाइस इन अ वीक, पॉसिबल है, बट रिमेनिंग डेज है आपको वो प्रैक्टिकल के लिए जाना है और आपको ऑन द जॉब ट्रेनिंग के लिए जाना रहेगा. उसके साथ साथ ऑनलाइन क्लासेस है, दोज आर जेनरिक सब्जेक्ट्स. फॉर दैट देयर इज अ ऑप्शंस फॉर द जेनरिक सेशन. वी प्रोवाइड द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑल्सो फॉर द theoretical training.
इट्स ऑल प्रोग्राम विच वी हैव डिजाइन, वो सर्टिफिकेट प्रोग्राम हो या डिप्लोमा हो या डिग्री हो या पीजी हो, सभी इंडस्ट्री ओरिएंटेड क्यूरिकुलम डिजाइन किए गए। इट मीन्स इंडस्ट्री का क्या रिक्वायरमेंट है, बेस्ड ऑन द इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट वी डिजाइन दैट कंटेंट, ताकि स्टूडेंट वो कंप्लीट करने के बाद एक रेडी पर्सन हो जो इंडस्ट्री में काम करने के लिए फिजिबल। सो वो बेस के ऊपर ये कोर्सेज डिजाइन है। Then you will also get a modern equipment exposure, latest dialysis machine when you go for the on the job training. On the job training, I already explained that ki you will get we will assign a dialysis practical center where you will go and you will work under mentor. They will observe you. They will give you things to learn, observe the things, so you will get the exposure of different modalities. डायलिसिस में भी अलग अलग modalities होती हैं, उस चीज का भी आपको exposure मिलेगा आपके इस कोर्स के दौरान। The benefit part of one more is here is the of course we you are learning here, and along with learning you can also earn something as like your pocket money. So this is there is the option earning and learning both together. So learning while you earning or earn while you learn. So the option is that when you starting your learning skill development programs, so there is the option with us, we provide the stipend to our student, those who are doing courses with us. As sir has mentioned, Sudhir Bagarao sir has clearly mentioned that कि डोमेन पार्ट इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। आपको अगर मैं डायलिसिस कोर्स के ऑप्शंस है तो डायलिसिस का डोमेन सीखना, उसका थ्योरेटिकल क्लिनिकल टेक्निकल नॉलेज जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। बट उसके साथ साथ सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है, ताकि आपको पेशेंट से कम्युनिकेट करना है, डॉक्टर से कोऑर्डिनेट करना है, आपके कलीग से कोऑर्डिनेट करना है, तो ये सारी चीजों का भी स्किल गेन करना इज दैट मच इम्पॉर्टेंट। सो हमारे जो भी कोर्सेज हमने डिजाइन किए गए हैं, डोमेन के साथ साथ जो भी रिक्वायर्ड सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग होनी चाहिए वो भी उस पार्ट में इंक्लूड किया गया है, ताकि आप जब ये कोर्स कोई भी कोर्स चूजे, चाहे वो सर्टिफिकेट हो, डिप्लोमा हो, डिग्री हो, पीजी हो, आप एक कंप्लीट पैकेज के साथ निकले कि यस आई एम सर्टिफाइड विद दिस competency also, this competency also. So the completion of course should be the degree that proudly say that कि yes मैंने ये कोर्स के साथ साथ डोमेन भी सीखा है, मैंने टेक्निकल नॉलेज भी सीखा है, मैंने क्लिनिकल भी सीखा है, एंड उसके साथ साथ सॉफ्ट स्किल भी दैट मच इन द सेम इसमें इम्पॉर्टेंट है, तो मैंने वो भी सीखा है। So all our programs contain domain along with the soft skill training. हमारे इस प्रोग्राम में एक और अच्छी बात है कि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिनको सीखने की चाह तो होती है, वो सीखना चाहते हैं, दे आर दैट मच थिंग्स दैट कि यस मुझे मैम सीखना है, बट बिकॉज ऑफ फ्यू थिंग्स लाइक द सम फाइनेंशियल रीजंस या सम फैमिली रीजन, they are not able to do the courses as they want, जिस फील्ड में जाना चाहते हैं। सो फॉर इन दैट ऑल्सो we offer the scholarship for deserving candidate. Yes, there are the criteria to selecting the student, like उनका document and everything is there, but yes there is the possibility for the scholarship. And the हमारा जो फाउंडेशन है एपेक्स किड्डी फाउंडेशन, वो हमारे स्टूडेंट्स को हेल्प करता है कोर्सेज के लिए, टाटा इंस्टीट्यूट में जो स्टूडेंट कोर्स करते हैं उनके लिए। एंड द थिंग्स वेरी मोस्ट थिंग, कोर्स करने के बाद क्या होगा हमारा, क्या मैं सर्टिफिकेट करूंगा तो मुझे जॉब मिलेगा, क्या मैं डिप्लोमा करूंगा तो मुझे जॉब मिलेगा, क्या मैं डिग्री करूंगा या पीजी करूंगा तो भी मुझे जॉब मिलेगा। बट आई जस्ट रियली वॉन्ट टू शेयर हियर, हमारा जो प्लेसमेंट्स है स्टूडेंट का, आवर 100% स्टूडेंट्स आर एम्प्लॉयड। Okay, so those who choose their career, I wanted to go for higher education after the BSc or something they wanted to do, they also
want to do in a same way that कि मुझे ये डिग्री करने के बाद हायर एजुकेशन के लिए जाना है, और हायर एजुकेशन के लिए जब आप जाएंगे तो भी करने के बाद भी आप सेम फील्ड में कंटिन्यू कर सकते हैं, आपके चॉइस के फील्ड में वो कंटिन्यू कर सकते हैं। सो जो स्टूडेंट हमारे पास पास आउट होते हैं, दे आर 100% एम्प्लॉयड, एंड not in AKC but other organization also, they are working with very good position with us. So as I mentioned that कि 100% एम्प्लॉयमेंट तो है इस प्रोग्राम में, अलॉन्ग विद दैट जो शॉर्ट टर्म प्रोग्राम है उसके उससे जस्ट जो शॉर्ट टर्म प्रोग्राम्स, आई एम सॉरी, जो शॉर्ट टर्म प्रोग्राम्स है उसके लिए जो दो वर्किंग प्रोफेशनल है, इफ दे वांट टू अपग्रेड देयर नॉलेज और टू गेट द प्रोफेशनल रिकॉग्निशन, दे कैन आल्सो डू दैट। आपका जॉब करते करते आप ये प्रोग्राम, ये कोर्स कर सकते हैं। इसके लिए नेसेसरी नहीं है कि आप जॉब कर रहे हैं पहले आपको जॉब छोड़ना है फिर ये कोर्स करना है। जहां आप जॉब कर रहे हैं, जॉब करने के साथ साथ ये कोर्स कर सकते हैं। जैसा सुधीर सर ने बताया कि देर आर मल्टीपल कोर्स ऑप्शन इन अ डायलिसिस, वी ऑल्सो proposed one new course, that is a renal biomedical technicians course, and our this is the good news for us, our course is which we have proposed is approved by the MSBS VET, and now we are in a stage to waiting for a batch approval. Once batch will be approved by the skill department, we will announce again this new course, this course, and you will get the notification from us हमारा जैसे ही इस बैच का हम स्टार्ट करेंगे। Okay, so it's all about our program which we are doing and why we are choosing. So let's go through that, कुछ हॉस्पिटल्स नेम और ऑर्गेनाइजेशन नेम जहाँ पे हमारे स्टूडेंट एम्प्लॉयड हैं। आई विल टेल यू नाउ कि जो हमारे 70 to 80% स्टूडेंट्स होते हैं वो इटसेल्फ हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ही एम्प्लॉयड हो जाते हैं, या उनको ऑफर हम इवन वी ऑफर ऑल 100% स्टूडेंट फॉर अ प्लेसमेंट before their course completion. They get the offer letter from us, and they join us. When few of them who are wish to join other organization also, they have joined like the they are in a Fortis hospital, or they are in a railway hospital, in a Western Railway hospital, a Criticare hospital, and they are in a Aurora Medical Trust, Thane TMC also, our students are working there. So I think हमारा ये जो सेशन है, ये सेशन के बाद आई एम श्योर हमारे टीम ने हमारे स्टूडेंट से ही आप डायरेक्ट सुनिए कि वेयर दे आर वर्किंग, व्हाट हाउ दे आर डूइंग आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस प्रोग्राम्स. And these are the our glimpses when we first started our course inauguration. It was in 2011 where we started. You can see here Sudhir Bagarao sir and our directors are here. So the program we have started. These are the glimpses of our convocations. Every year student complete their any which way certificate या diploma या degree, तो we do convocations, and these are the some ways you can see. There is the recent जो convocation हुआ है हमारा अप्रैल 2025 में, जो last year batch pass out हुआ है उनके लिए. So this is the pictures for their achievements, so, for degree programs. Along with that, we also provide BLS training, that is the AHA certified BLS training we provide, and it's this program which we have conducted, and we are regularly doing this training for our staff, for healthcare professional,
So those who wish to join this BLS training also, they can also connect us. So thank you everyone for listening. Just a second. Thank you, Nidhuji. I think very detailed explanation for all the courses. Further doubts that students who are considering becoming a dialysis technology is understood. Few words which I was thinking as a student, which I loved listening to, was one was 100% placement is what you have done. That means if I would have been a student, I would have first thought that कि अबे मुझे placement मिल रहा है. First thing. Second, you also mentioned that there is learn and earn. ऐसा ऑप्शन हमारे पास तो नहीं था, तो विच इज गुड दैट नाउ द किड्स आर गेटिंग दिस, दैट वाइल दे आर लर्निंग दे आर ऑल्सो गोइंग टू अर्न, they are going to support their own education. Not only that, but they are also going to support their parents. So this is revolutionary, because today Sudhir sir will agree that majority of the courses are कि आप 2 साल तक लाखों खर्च करो, तब तक कुछ कमाओ मत, दिन रात 14 घंटे मेहनत करो, and then you enter. And that's what we have also. But I think with ASDT, and you guys are doing great work getting all this together, that it is beneficial for people who want to work while they are studying, or while they are studying who want to work and support their family. So thank you, Neetu. Yes, Uh, this is the beauty of our courses, Right. which we offer especially. Right. In that programs, we offer all the students who will be joining us are eligible for a stipend, and the deserving candidate for the scholarship as well. As you mentioned that it was not previously introduced for the on and learn practice, but nowadays we are offering on and learn practice here. Great, great. There are many questions related to this, and we are going to address to that. But now let's move to the next section, where we have our students who have been alumni, and they are now today very, very successful. Let's hear from them who have shared their testimonials. Team, could you play them? Thank you. Myself, Mr. Vikram Subhash Patil. I am working in Apex Kidney Care Private Limited in home dialysis department as a senior manager. I am leading 25 technicians team in home dialysis department. I have completed my BSc degree in Apex School of Dialysis Technology, which is affiliated to Tata Institute of Social Sciences. I have registered my BSc degree in Maharashtra Board Council, Paramedical Council. मैंने जब ये फील्ड चूज किया, तभी उसके बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं था, बट बेटर गाइडेंस एंड सपोर्ट के कारण मैंने ये फील्ड चूज किया, जिसमें मुझे पेशेंट केयर, पेशेंट का हेल्थ, जो किडनी के फेल होने के बाद जो डायलिसिस करते हैं, और उससे पेशेंट की जान बचाने का मुझे चांस मिला है. मेरा एक गुंजाइश है सबको कि आप भी एक कोर्स करके अपना बेटर करियर जो है बड़ा करें और अपने करियर का अच्छा ग्रोथ करें, ये रिक्वेस्ट करता हूँ. थैंक यू. Hello, I am Krishna Dhumre, QA executive for the rest of Maharashtra region at Apex Kidney Care. I completed my degree in dialysis technology from Apex School of Dialysis Technology and was fortunate enough to receive a scholarship. Starting my career as a junior dialysis executive, I have progressed to managing 17 centers and 150 staff across Maharashtra as a QA professionals. I am grateful to my teachers, seniors and colleagues for their encouragement and support throughout my journey. माझं नाव प्रशांत पाटील आहे. माझं ग्रॅज्युएशन टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्स मधून झालेलं आहे. मी आता अपेक्स किडनी केअर ठाणे वर्तक नगर या ठिकाणी ॲज अ इन्चार्ज म्हणून काम करतो. माझ्याकडे आता 5 टेक्निशियन काम करत आहेत. या क्षेत्रात येण्यापूर्वी माझ्याकडे कुठलाही ठोस मार्ग नव्हता, पण योग्य प्रशिक्षण आणि पाठिंब्यामुळे आज माझ्याकडे एक सन्माननीय नोकरी आहे व उत्पन्नाचं साधन आहे. सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे जीव वाचवण्याचं समाधान देखील आहे. या करिअरने माझ्या आयुष्याला उद्देश दिला आहे. तुम्हालाही एक स्थिर आणि अर्थपूर्ण भविष्य हवे असेल तर डायलिसिस टेक्निशियन या क्षेत्रात एक संधी नक्की द्या.
Great, great. Feel so proud to see all of them so successful. And not just them, but there are so many other students who are now at a very senior position. Few of them are here with us live and to guide you all. And I would now like to welcome all the students, Divya, Chetan, John. I would request you to put yourself on video mode so that we can now have an interactive session quickly. Let's begin by hearing from Divya that Divya, could you talk about what is this? How did you enter this course, and now what are you doing? And what is your message to all the young students? Sure, sure. So, good afternoon, everyone. My name is Divya. I've completed my BSc in Dialysis Technology, batch 2019. And afterwards, I completed my master's in hospital administration and healthcare management. So my journey started from a trainee in Malad head office. I mean, we have a main center there. Then I moved to Khar Hinduja, and after that, it was a drastic change when I moved to home dialysis, where I worked independently, confident, and I was quite adaptable. And then now, currently, I teach as a professor in KBP College Vashi, dialysis technologist, and I also teach in Bhavans College Andheri, a hospital management. I work with iTransform, which is a startup. So, as I completed my master's in hospital administration, I took a turn in HR and I lead special projects and all right now. So, my message to students will be like, be consistent, do what you like, and you will really enjoy this. If you like it, just do it. Excellent, excellent, Divya. I think I'm very happy to see that you did not limit yourself to only one course. After you finished your course, Yes. you did management. After that, you are now into teaching. So, that is a very good information for all the students who are listening, that you don't limit yourself to only one course and expect that your career is going to grow multifold. And Divya is a great example of that. And simultaneously, we have Chetan. Chetan ji, आप कुछ बताएंगे कैसा आपका शुरुआत हुआ? Yes, sir. Yes, sir. Hello, good morning, friends. Good afternoon, friends. I am Chetan Khate. I am a dialysis technician. मैं रेलवे वेस्टर्न रेलवे के जगजन राम हॉस्पिटल में काम करता हूँ। मेरा बीएससी केमिस्ट्री 2008 में कंप्लीट हुआ और उसके बाद मैंने ये मेडिकल फील्ड में कदम रखा। अपेक्स किडनी केयर मलाड से मेरा करियर शुरुआत हुआ। मेरे करियर के शुरुआत के दौर में मैंने अपेक्स स्कूल ऑफ डायलिसिस टेक्नोलॉजी का 2 साल का कोर्स डिप्लोमा किया है। उसके बाद सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी का 6 मंथ का सर्टिफिकेट कोर्स किया। और जब मैं ग्लोबल में था तभी 3 मंथ्स का क्वालिटी केयर डायलिसिस का 3 मंथ्स का सर्टिफिकेट कोर्स किया है। पर सही मायने में अगर देखा जाए तो बैचलर इन वोकेशनल डायलिसिस टेक्नोलॉजी जो है डिग्री जो है वो लाइफ में चेंज किया, मेरा पूरा लाइफ चेंज किया। एक्चुअली 2017 से 2019 तक मेरा ये डिग्री पूरा हुआ। उसके बाद तुरंत बाद मैंने रेलवे में भर्ती हुआ। ये डिग्री ये डिग्री में मुझे बहुत कुछ सिखाया। पढ़ाई के साथ प्रोफेशनल करियर, पर्सनली डेवलपमेंट, स्टेज डेयरिंग, अकाउंटेबिलिटी, इंग्लिश कम्युनिकेशन में बहुत सुधार आया। मैं सभी को गर्व से कह सकता हूँ कि आप सभी अपेक्स क्लिनिक केयर अपेक्स स्कूल ऑफ डायलिसिस टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ो, एडमिशन लो और अपने वर्क नॉलेज, पर्सनल ग्रूमिंग और प्रोफेशन में प्रगति करो। स्टूडेंट को ये भी बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म ये बहुत स्टूडेंट को ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है कुछ कर दिखाने के लिए। इस स्पर्धात्मक युग में टिके रहना है तो काम करने के साथ पढ़ना भी जरूरी है। यहाँ बहुत अच्छे फैकल्टीज है, क्लासरूम भी अच्छा है और और हर एक स्टूडेंट के ऊपर ध्यान दिया जाता है। सभी को बेस्ट लक। थैंक यू। ग्रेट, ग्रेट। चेतन जी, आप गवर्नमेंट के साथ काम कर रहे हो और रेलवे में सपोर्ट कर रहे हो। ये कितने यस। लोग हैं जो सोचते हैं कि हमें गवर्नमेंट जॉब्स भी मिले, और ये कितना अच्छा रास्ता आपने बताया कि आप अगर हेल्थ केयर करियर से अगर आते हो तो आप गवर्नमेंट में जा सकते हो। सो लॉट ऑफ स्टूडेंट्स यस। कैन टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम दैट। एंड साइमल्टेनियसली हमारे पास एक और टेक्नीशियन है, जॉन। जॉन, आप कुछ बताएंगे? कैन यू शेयर your Sir, story? my journey begins first batch of bachelor course in upper kidney care. Since that, I got a theoretical knowledge and practical knowledge full, fully expert के साथ। और मैं प्रेजेंटली प्रवरा मेडिकल कॉलेज में काम कर रहा हूँ। और मुझे एपस किडनी केयर में सबको रिकमेंड क्यों करना है, क्योंकि उधर
हर एक बंदे को, जैसे चेतन ने बताया कि सबको ध्यान देता हूँ, लेकिन उस टाइम में मुझे डिसिप्लिन, कम्युनिकेशंस, क्रिटिकल केयर सिचुएशन में कैसे कॉन्फिडेंस से काम करना है। और बाय द वे, मैं आज मेडिकल कॉलेज में इंचार्ज के पोस्ट पे हूँ, लेकिन मेडिकल कॉलेज होने के बावजूद हर बंदा, जैसे नर्सिंग स्टूडेंट, एमबीबीएस स्टूडेंट, इवन एमडी मेडिसिन, जो भी क्वेश्चन पूछता है तो मैं कॉन्फिडेंस से उनको बताता हूँ, क्योंकि बिकॉज ऑफ एकेसी एकेसी ने जिस प्रकार से मुझे डायलिसिस प्रोसीजर थ्योरी सिखाया है, उसके वजह से। और हर बंदे को बोलना चाहता हूँ, अगर आप कंप्लीट कर दिया कोर्स, इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप एकेसी से जुड़ते नहीं। मैं अब भी सुधीर बागाराव सर से क्वेश्चन करता हूँ, जो भी मुझे प्रॉब्लम्स आता है, और हर साल में एक बार एकेसी जो डायलिसिस सिंप्लीफाइड को प्रोग्राम करते, उस दिन मैं डेफिनेटली आता हूँ। और हर नेफ्रो, जैसे कि राजेश कुमार सर, बिल्ला सर, सब जितने भी एक्सपर्ट आते हैं, उनको एक एक क्वेश्चन पूछता, और वो मुझे उसी प्रकार से हेल्प करते जो मेरे वर्क प्लेस में जाता हूँ। तो हर बंदे को बोलना चाहता हूँ कि अगर कोर्स करना है तो एक किसी ज्वाइन करके देखो, आपका लाइफ सेटल हो जाएगा मेडिकल फील्ड में, और आपको एक अच्छा चांस मिल रहा है। एक्सीलेंट। आपने बहुत अच्छी लाइन से एंड किया, ज्वाइन करके देखो। तो ये बहुत जरूरी होता है कि फर्स्ट स्टेप लेना जरूरी होता है, कोई भी सक्सेस के लिए बोला जाता है। तो आप ज्वाइन करके देखो, ज्वाइन करने से पहले इंक्वायरी करके देखो, इंक्वायरी के पहले आप एक कन्विक्शन करके देखो, इज व्हाट जॉन इज सेइंग। वेरी गुड। सो नाउ नेक्स्ट मूव, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन। इज दैट Sir, we have a lot of questions, and I think we should now address to them. Sure, We sure. have Tanvi Shirkar, who is asking that BSc, what is the next after she is BSc, and after that, what is it with us with ASDT? Uh, what's her name? Tanvi, Tanvi. sir, Tanvi Shirkar. Yeah, Tanvi, there are a lot of options you have. You have just seen the example of Divya, who has started as a trainee dialysis technician. She completed her bachelor's degree. Post that, she entered in a hospital administration and management. Now she's a teaching in hospital management and administration, and also dialysis technology. So after BSc, there are so many fields are open. I can give you one example. One of our student, he attempted a civil service examination, and he last month he was selected as a superintendent of police. So uh, after this degree, this degree is recognized by UGC, you can enter in any field. If you want to enter in a management, you want to do MBA, you want to do post graduation. Post graduation is also available in dialysis technology or renal science. You can also try out that. So many options are available if you want to continue your education. Great, great. I think a lot of students have asked these same questions that for after BSc kya, so you have addressed to few of them. Another very important is pate ki baat, which is what should be the salary to be expected. That after I finish the course, range of salaries. Yeah, this is very difficult question to answer, Preetham, because the salary range would depend on the institute to institute and your job role to job role. Like for example, if I choose a junior job role in a city like Mumbai, your starting salary will be somewhere around 18 to 20K per month. If you go towards north, a city like Delhi, their packages are better than Mumbai. It also goes to institute. So all depend what kind of job role you are into. And of course, it progresses as you gain experience. You can uh, raise your career. uh, आपकी करियर बढ़ती जाती है, आपका क्रेडेंशियल बढ़ते जाता है। सो अलोंग विद दैट आपको डिफरेंट पोजीशंस मिल सकते हैं, और उसके साथ आपकी सैलरी बढ़ सकती है। बट द स्टार्टिंग सैलरी इन एनी सिटी वुड बी अराउंड 18 to 20K डेफिनेटली।
which is great, considering that you're going to pay stipend and it is going to grow further. So it's a good salary to increase. Now, sir, another question is that how much ये इस्माइल है मुंबई से वो पूछ रहे हैं how much direct patient care is involved? Is it only classroom या उनको कुछ practical patient care मिलेगा? As Nitu mentioned, this course is designed in such a way that it's a on-the-job training, meaning very little theoretical knowledge, but we give more emphasis on a skill building. So along with the soft skill, clinical skill is also important. So in our curriculum, we give more emphasis on a skill building. So from day one, they'll be working on the field. Like for example, in a conventional courses, all the practical that you learn is in a lab. But here, practical aspect you will learn on the field with the live patient, with the live treatment. So that's a differentiator uh, among academic course and a skill course like arts. So we give more emphasis on a skill building. So they get right from the day one, they get a industry exposure. Great. Next question is that I would like one of the students, Divya, if you could answer. I know sounds, but it is important that is there any vacation in the course? Did you? No, 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 there is no vacation. And because as this is a medical, I mean medical course and you are the responsible person, it's okay, you can go for a vacation, but a pre-planned one. I won't say that you can plan a long vacation or you can go every month for a vacation. No, that is not the thing. I mean, श्योर श्योर नाउ चेतन जी आपको एक सवाल पूछना था कि सैलरी में डिफरेंस होता है क्या अगर डिप्लोमा कोर्स करो या ग्रेजुएशन करो एसडीटी से आपने कौन सा कोर्स किया या डिफरेंस आप देख रहे हो नीतू जी यू वांट टू टेक दिस क्वेश्चन इफ चेतन कैन कम लेटर Sir, Chetan is a best example for this program. Don't limit yourself. Abhi, he mentioned that he started with the trainee and he started with the certificate program. He did certificate, then he didn't stick that कि मेरे को certificate कर लिया, now I am okay, मैं job कर रहा हूँ, मुझे आगे नहीं करना है. He is the person who thought in a that way. अगर मैंने डिग्री सर्टिफिकेट किया है तो अगर मैं डिग्री कर रहा हूँ तो उससे क्या बेनिफिट है मुझे उससे क्या मिल रहा है एंड ही क्लियरली मेंशन दैट कि जब मैंने डिग्री किया तो उसका बेनिफिट और जब मैंने सर्टिफिकेट किया तो उसका बेनिफिट क्या है सो दिव्या एंड चेतन ने मेरा प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया कि यस नो लीव अलाउड इन अलाइड हेल्थ केयर कोर्सेज if you are planning for long leave please don't plan a short way and do a pre-plan नहीं मैं कल जा रहा हूँ that is not going to be Understood. in a this kind of program because it's fully focused on a practical it means on the job training and a theoretical things. Great नीतू जी another question So Divya, yes, your sir. hard work is paid off. I can see your smile on your face, right? sir, you were there, Neetu madam were there. It wouldn't have been possible because the exposure which we got, I mean the training, it made us more confident and now wherever we stand, it is all because of you, sir. So So that I'm very means grateful to you. wherever you learn, wherever you work, hard work is indispensable. Hard That work is is true, sir. necessary. But also, you need some guiding hand. You need someone who tells you, go ahead, we are there, do this, do that. So that is why. Yeah. Right. Sure. Divya, this is the best Guru Dakshina which a guru hears. Even I teach and I know when you see the students, being successful, really makes us feel. So Dhirrao sir could Definitely. And we are always in touch. I mean, no matter what, Neetu madam always calls me, Divya, what are you doing? We are planning this thing, please. So it's a great honor to still be a part of it. And it Right. feels like we're still in This is touch. highlighting Divya the culture of ASDT. Right. Sometimes True. you know that मोहब्बतें वाले अमिताभ बच्चन वाला कोर्स है या फिर ASDT सुधीर सर वाला कोर्स है. There's a Yes, difference ये where सुधीर the सर students वाला are कोर्स there now और even ये connected. मोहब्बतें वाला भी है because I mean as a trainee we started and you know now where we are. So it's all because of them. Correct. It's a mix अदरवाइज of everything. अगर जस्ट एक कॉलेज का कोर्स होता ना तो ये ऐसे होता है कि हाँ हम पास आउट हो गए अब हम अपने Correct. अपने जगह पे हम किसी को जानते नहीं है बट ये ऐसे नहीं है दिस इज लाइक वी स्टार्टेड स्मॉल हमारा बैच भी इनफ बड़ा था इट वाज लाइक हमने स्टार्ट किया था इट वाज अ 60 बैच
60 और 50 बैच था, जो उतना ही कंटिन्यू रहा 3 साल तक। हार्डली एक या दो जन उसमें से निकल गए होंगे, बट वी वर देयर सिंस, हमने पूरा डिग्री हमने साथ में पूरा कंप्लीट किया है। तो ये एक्सीलेंट, प्रशांत एंड ऑल, वी वर ऑल ऑलमोस्ट इन द सेम बैचेस। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। तो प्रीतम सर, मुझे बोलना है। जी जी जॉन। जो बंदी पूछ रहे हैं कि आपको सैलरी कितना मिल रहा है, मैं सैलरी से छुपा फायदा बताता हूँ। हमको नेफ्रोलॉजी से मिलना पड़ता है। जो अपनी फैमिली के जो भी डिजीज है, फ्री ऑफ कंसल्टिंग मिलते हैं। तो जो ठीक, भी बंदा ठीक है। सोचता है सिर्फ सैलरी देख, सैलरी मत देखो। तुम इस फील्ड में एंट्री करो एक किसी के साथ, आपका सब प्रॉब्लम। इवन अभी मैं मेरे बच्चे के एजुकेशन एडवाइस करता हूँ, सुधीर सर से लेता हूँ एडवाइस, ओपिनियन लेता हूँ। तो सैलरी से सिर्फ देखा तो ये कुछ सैलरी तो आती रहेगी, बढ़ेगी, लेकिन हमारा जो रिलेशन बढ़ रहा है, टॉप मोस्ट नेफ्रोलॉजिस्ट हमसे मिलते हैं, हमारा एक एक दो क्वेश्चन सॉल्व कर, इवन अपना फैमिली का भी पूछ सकते हैं हम। तो प्लीज सैलरी मत सोचो, पहला कोर्स एक किसी ज्वाइन करो, उसके बाद आप देखो अपना बेनिफिट सैलरी के बाबत में और चुपे साइड से भी मिलता है। करेक्ट है जॉन। मैं भी एक ऐड करना चाहता हूँ कि चूजिंग एएसडीटी और एनी अदर मेडिकल हेल्थ केयर रिलेटेड, ये सिर्फ पैसा नहीं देता है, करियर नहीं देता है, बट एक सेटिस्फैक्शन भी देता है, ट्रू। फुलफिलमेंट देता है कि आप जो जो करने वाले हो एवरी डे, उससे किसी के लाइफ में एक डिफरेंस आ रहा है, उसकी हेल्थ बेटर होगी, उसकी फैमिली का सपोर्ट होगा। तो ये भी देखना होता है बच्चों को, इज व्हाट आई वुड लाइक टू ऐड। नाउ वन लास्ट क्वेश्चन एनीवन कैन टेक फ्रॉम द पैनल इज दैट आफ्टर डूइंग दिस इज देयर एनी अपॉर्चुनिटी टू वर्क अब्रॉड? मतलब कोई डिग्री अब्रॉड भी एक्सेप्ट होती है, लाइक आपके पास टीआईएसएस की डिग्री है, या फिर कोई और गाइडेंस है विच यू कैन शेयर इफ समवन वांट्स टू गो टू ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएस? मुझे सर एक Opportunities are available, but you will have to, clear the local exams and local credentials. And nowadays, getting visa in some countries is difficult. So options is there. I mean, it's not that you won't get a job there, but it's not so easy. Yeah, John, you Agreed. want to say something? John, yes. मैं जब एक कोर्स कंप्लीट कर दिया, तो मुझे एक पर्सनल डॉक्टर ने प्रेसिडेंस थ्रू ऑफर दे दिए थे कि तुम आते हो क्या हमारे साथ अब्रॉड में सेटअप करने के लिए। तो एक ऑफ होता है कि एक किसी का नाम के पीछे एक वैल्यू है, कि अगर एक बंदा एक किसी से पास आउट होता है और प्रैक्टिकल भी हो रहा है, तो हमको सेटअप करने को। तो मुझे युगांडा के लिए चांस मिला था, और ड्यू टू फैमिली प्रॉब्लम में नहीं जा सका, लेकिन ऑफर आते हैं सर। True. ग्रेट, ग्रेट। बहुत अच्छा है ये तो। अभी एक लास्ट क्वेश्चन सर इज दैट वी हैव गणेश गायकवाड़ हु इज आस्किंग दैट कि आफ्टर से बीएससी और बीकॉम should he do MBA or MSc? Because MBA is overrated now. A lot of people think that कि कितना MBA करेंगे, तो MSc करे या MBA करे? It all depend on your interest. And MBA also, if you ask me, you should choose the institute. That is very, very important. Doing MBA in any institute, whatever you get, that is not going to help you. Correct. Institute, curriculum, teachers, faculty, all that matter. So if you're thinking of going, even a management course, you look at institute, credential of institute, how their alumni are placed, where they are placed. That is very important. About MSc, uh, there are a lot of opportunity after post graduation. Also, you get opportunity in research. You get opportunity in industry. Like you can work as application specialist. If I may, refer this as a dialysis, or you can enter in academics. So both the options are good, but provided you do that course from a reputed institute and with a good curriculum. Sure. So Ganesh, hope it is clarified. Now, there are a lot of questions, but we are short on time. It's already 1 o'clock. So what I would suggest is that please note down this number. We have a helpline number, and everyone can call us and get further inquiry done. We can guide you also on your career path and also on ASDT courses. I am repeating the number now. It's 86555 666. That is 666
865528. Once again, it's 8655566628. Please call us on that number and you will get more information. We all will be there to support you. Now, sir, before we end, can I get a rapid fire 10-15 seconds from each of you, Neetu ji, from you, and also our panel here, on what is that you would like to say last to all the students? Sure. We start with the student first. Yes, that's a great idea. Yeah. John, 10 seconds 10 message. सेकेंड एक ही सीट में ज्वाइन हो जाओ, आपका कैरियर सेटल, लाइफ सेटल हो जाएगा विथ फाइनेंस ऑल्सो और हेल्थ केयर से. Great. Divya? So my message will be curious. I mean, जो even if people say why have you been here, ये क्यों करना है, कि I mean इसमें कुछ है नहीं, but तुम्हें करना है तो प्लीज करो, क्योंकि लोग बहुत सारे नेगेटिव बोलेंगे, नेगेटिव बोलते ही है इसके बारे में. सो जस्ट सिर्फ प्रोस पे मत ध्यान दो, कॉन्स पे भी ध्यान दो, सुनो, बट डोंट रिएक्ट ऑन इट, जस्ट डू इट, बिकॉज आई फील दिस इज अ वेरी ब्यूटिफुल कोर्स which I have come from it. You get a lot of positivity. At the end of the day, you are happy. That's what I would say. Great, great. Neetu? Just I'll say, come and experience. The thing is Excellent. that, yes. The only thing is that when you will come, you will experience the training, you will experience the theoretical part, you will experience the practical training. So everything, come and see the what is difference you will get in your own. Great. Sir? Follow your passion. We have two live example here, Divya and John. So follow your passion. Whatever you want to do with दिल से करो. जो भी चीज करना चाहते हो वो दिल से करो. आधा अधूरा चीज मत करो. वो सक्सेस Absolutely. अपने आप आ जाएगा. सब कुछ अपने आप will fall in place. But put your 100%. Whatever you are doing, put your 100%. Great, great. So with this, I think it's time now that we have deep dived and given as much as possible information through doctors, through technicians, through experts. Rajesh Kumar sir mentioned, IRC sir, that is Indranil sir, who is our CEO, mentioned about pharma, healthcare across that and what our company is. Then Sudhir sir took us through all the kind of courses available today and what is your career path. Then he also spoke about what is ASDT, what are the career options which you have to work into the renal kidney related industry. Neetu ji mentioned about all the courses which are available today. Divya, John, Chetan shared their own experiences. Dr. Deepa Pahade spoke about pathology. All this was made for you, all students, to learn. Take a very, very important decision of your life, that is career, because career will shape you, your personality, and choosing it right is your right. So do it rightly. And for any more queries, information, please visit us on our website or our social media, send us message. The phone number which I mentioned, you can call on that. Visit our college, which is at Malad West near the Link Road. You can see the address on Google. And please come get a free counseling, further one-to-one counseling with us. Enroll the course. The course is going to be open for very few days now. The courses will begin soon. So ensure you join us as soon as possible. And as I said earlier, whoever is going to call and inquire today is going to get a free and very interesting gift. So ensure that you call us today. And with this, I would like to end this online session. And really thankful to all of you who have attended from across the country. I would like to thank all the speakers. I would like to thank my team, Ranjita, Rajesh, on the back end who have been helping tirelessly, and all who have made this possible. We will be doing more series and connecting with you further. Please be live and attending our social media handles. We will keep giving the information. So signing off again, Preetham Sawant, and look forward to see you at ASTT. Thank you. Thank you, everyone. Thank you, speakers. Thank you. Thank you. Thank you, sir.